even they can, see me, and they can, they can also listen to the interaction that we are going to have. So hopefully now we are also live on Facebook. So all of you are also visible on the Facebook. So welcome parents. Pleasure seeing you all. I think I have a long association with modern school because my younger daughter studied at modern Barakhamba. And as a parent, I have visited that school number of times, almost 4 or 5 times in a year at least. So maybe how many times? It must be 60, 70 times I must have been there. I've met the teachers, I've met the principal. It's been a pleasure, going to that school. The values that school provide, the education that school provides, it's something that you will be very proud of once you will have your kids coming out of that. I mean, this name itself, that the child is from modern school, is enough to put your child in the top list. That's one thing. But I think the qualities that they give, the skills that they give to the kid, is something that you really will be proud of. Maybe the struggle right now may be very challenging. That school says this, teachers say this is not okay, that is not okay. But that's something. Just bear with it, I would say. But you will be proud of it that your child has come out of a very, very, not only renowned school, but a good school with lot of experience and expertise of teachers. So I congratulate all of you to have participated with this school, and being parent of a child who has studied from this school, who can vouch more than me. So with this, I think I know the concern right now with all of us is that we are all stuck at home with kids, with husband, with grandparents, with other family members, and we don't know how to manage all that. So at times it can be very, very challenging. I fully empathize with all of you, especially with kids who have a lot of energy, and you don't know how do you handle that energy. So we were just discussing what should be the topic where we should be, discussing with the parents, and then Neetu ma'am suggested that we should go for positive parenting. That's one thing that I think we all need right now, because this is some situation that we had never expected us to happen, that we are locked at home. वो कहते हैं ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है कि हम सब कमरे में बंद हो और बाहर जाना बंद मना हो जाए. So that is the reality for all of us. But what I can tell you, जो आज का जो session है, that's going to completely change your relationship with your children. That's going to completely change your perspective about life, about your children. Because I am one person, in spite of, like I am a psychologist, and at the same time, I'm a parent of 2 grown-up daughters. So I can very well tell you the challenges that you experience, and then also how do you handle it from the psychologist point of view. From an experienced parent point of view, I can tell you how do you really handle that part. So I'm sure most of you must be really overwhelmed handling your kids, especially with the online teaching going on, household chores, and nobody to help you at home. Especially when you don't have any help at home, it becomes very challenging to manage everything. But let me tell you, this is the best opportunity to take a U-turn. You must be wondering, what U-turn? We are not even driving our cars. We are not even driving anything. So what U-turn? So life has given you a chance to take a U-turn. Like, for example, you all must have been very busy with your life, running around for your career, for your other responsibilities. So in that rush, sometimes we do not give enough time to required, issues or required situations or relationship for that matter. And many a times our kids also suffer because of it, because we are short of time. So we somewhere feel, okay, let me do this and then I'll talk to my child. Okay, let me do this, then I'll attend my child. So in that rush, sometimes children grow up and we don't get that chance to connect with them. So this U-turn, this pause button, this reset button given by God is a golden opportunity to, rebuild your bond with your kids. And I'm not just preaching here, I'm going to share wonderful tips with you, tools with you, how you can do that. I know connecting with the younger kids is not a very big challenge, because younger kids are already looking for, some attention from you. So they must actually be running after you, asking for, कि मम्मी ये करवा दो, मम्मी मेरे साथ ये कर लो, मम्मी आ जाओ खेलते हैं, पापा चलो ये करते हैं. And you feel कि यार इनका तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है ना, because especially you have so much to do at home, तो सब चीजों को बैलेंस करना बड़ा जो है चैलेंजिंग हो जाता है, and you kind of get exhausted. On the other side, those of नहीं you, बैठ जाओ. can I request you to put your
device on silent mode, please. Parents, please put yourself on mute. Yeah. So Thank you so much. छोटे बच्चों के साथ इतना आपको शायद उनको एंगेज करने में चैलेंज नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे टीन एज में हैं, थोड़े से भी जैसे 9-10 साल से बड़े हैं, 11 साल से बड़े हैं, उन पेरेंट्स के लिए मुझे पता है कि काफी चैलेंजिंग होता है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे अपना बॉन्ड डेवलप करें या उनके साथ कैसे अपना कनेक्शन बनाएं। और जो आज हालात चल रहे हैं, जो आज टाइम चल रहा है, बहुत जरूरी है कि एज पेरेंट्स आपका अपने बच्चे के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो, एक ट्रस्ट हो, जहां बच्चे आकर आपके साथ अपनी सारी बात कर पाएं और आपको भी पता हो कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। स्पेशली फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3-4 दिन पहले वाला जो केस हम सबके सामने आया है, जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ है और बहुत ज्यादा न्यूज में भी हम सुन रहे हैं, इसका मतलब है जो बच्चे ये एक्टिविटी कर रहे थे, वो बॉयज लॉकर रूम करके जो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, पेरेंट्स को इसका आइडिया ही नहीं था। और उसके अलावा उससे भी अगर एक स्टेप पीछे चली जाती हूँ, तो शायद मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे को ये समझा ही नहीं पाई कि बेटा क्या करना ठीक है और क्या करना गलत है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब मैं अपने बच्चे को बजाय ये कहने की कि ये करो और ये मत करो, अगर मैं उसके अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड कर दूं कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है, मैं हूं या नहीं, आपको ये नहीं करनी है, और ये चीज ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ये मेरा कहना है कि स्पेसिफिकली मैं इस चीज पर आज फोकस करने वाली हूँ। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेज में है या टीनेज में आने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बेहद यूजफुल होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना कि हाउ डू आई गेट इनटू माय चाइल्ड्स लाइफ, ये होना समझना बहुत जरूरी है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल भी जो है बच्चे हमारे साथ बात नहीं करते, जब हम उनके कमरे में जाते हैं, फोन पर होते हैं, तो वो फोन हमें नहीं देखने देते, या लैपटॉप पर अगर कुछ देख रहे हैं तो हमें शेयर नहीं करते कि वो क्या देख रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर उनकी कोई चैट है तो उसको उन्होंने लॉक करा हुआ है। आई एम श्योर इस तरह की प्रॉब्लम्स एज पेरेंट्स आप लोग जो है फेस कर रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो जो ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक बहुत ही मजेदार बैक डोर एंट्री की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन दी डिस्कशन दैट आई एम गोइंग टू डू। पूरी एक प्रेजेंटेशन होने के बाद में जो भी अगर आपके सवाल होंगे, मैं वो लेने के लिए डेफिनेटली तैयार हूँ, एंड आई ट्राई टू आंसर। और मेरे कोई भी जो आंसर्स कभी होते हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस और मेरे सब्जेक्ट से के बेसिस पर होते हैं। मैं कभी आइडियल आंसर्स देने की कोशिश नहीं करती। आप लोगों की डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, सोसाइटी जिस सिचुएशन में है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी जो है सॉल्यूशंस या सजेशंस आपको देती हूँ। तो सबसे पहला जो मैं आपसे ये कहूंगी कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप सब लोग बहुत बिजी हैं, घर का बहुत सारा काम है, लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर, एज अ ग्रैंड मदर, और अगर आप चाचा हैं, बुआ हैं, मासी हैं, जो भी हैं, अगर आप डिसाइड कर लें कि ये आधा घंटा या ये घंटा मैंने अपने बच्चे को अलग से देना है। जब मैं क्वालिटी टाइम की बात करती हूँ तो कई बार मदर्स कहती हैं, जी मैं तो घरेलू हूँ, मैं तो कोई जॉब पे तो जाती नहीं, सारा दिन तो बच्चा मेरे साथ ही होता है। That is you are with your kid, but you are not connected with your kid. When I talk about quality time, what exactly I mean by the quality time is mentally, physically, socially, spiritually, emotionally you are connected with your child. तो वो जो एक आधा घंटा चाहे 1 घंटा जो भी आप बच्चे के साथ देते हैं, वो सब कुछ छोड़ के जो घर के जो काम है, चाहे वो खाना बनाने का है या चाहे किसी को कोई कपड़े धुलने का है या प्रेस करने का, या जो भी आपके घर के काम है, उन सबको छोड़कर जब आप बिल्कुल बच्चे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसको क्वालिटी टाइम कहा जाता है। और एक और इसका एक एस्पेक्ट है क्वालिटी टाइम का, इस क्वालिटी टाइम में हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। इस क्वालिटी टाइम में हम बच्चे को उसकी गलतियां नहीं बताते। इस क्वालिटी टाइम में हम उसको ये नहीं बताते कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो हम सारा दिन करते हैं। इस क्वालिटी टाइम में हम बच्चे की लाइफ में एक दोस्त बनकर जाने की कोशिश करते हैं, उसको एक दोस्त की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसकी डिफिकल्टीज हैं। जब बच्चा आपको घर आकर बताता है कि क्लास में मुझे इस बच्चे ने ऐसे बोल दिया या धक्का दे दिया या मुझे गाली दे दी या मुझे इस नाम से वो छेड़ता है, कितने पेरेंट्स हैं जो बैठकर बच्चे के साथ इसको एड्रेस करते हैं या उसको एम्पावर करते हैं दैट व्हाट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग इट। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू दिस बुलिंग और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बाय फ्रेंड्स, और स्कूल में ही नहीं, इवन नेबरहुड में ये हो सकता है, बस में हो सकता है, वैन में हो सकता है। तो मेरा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब है जब हम बच्चे के लेवल पर जाकर बच्चे के तरीके से उसकी सिचुएशन को समझते हैं और फिर हम उसको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम, राइट वे
to do it. तो और इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इवन क्वालिटी टाइम में आप बच्चे के साथ अगर खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं या स्क्रैबल खेल रहे हैं, अब इसमें इस पूरी गेम के दौरान में आपको बच्चे के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला, आपको बच्चे को ऑब्जर्व करने का मौका मिला, आपको ये समझने का मौका मिला कि मेरे बच्चे में क्या अच्छी क्वालिटीज है, जैसे अगर उसमें पेशेंस है या वो आराम से बात करता है या अपनी टर्न के लिए वेट करता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे ने बहुत अच्छी से। या अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है जब वो हारने लगता है तो रोने लग जाता है, या बच्चा अपनी टर्न की वेट नहीं करता या चीटिंग करता है, तो आपको लगता है कि ओके ये एक चीज है जो मुझे बच्चे को हेल्प करनी है बदलने के लिए। तो दीज आर द मोमेंट्स व्हेन यू गेट टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड। साथ ही साथ जब आप बच्चे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जब बच्चे की लाइफ में आपको एंट्री मिल जाती है, जब बच्चे की लाइफ में आपको एंट्री मिल जाती है, तो बहुत सारी चीजों को आपको मॉनिटर और सुपरवाइज करने का मौका मिलता है। जब ये मॉनिटरिंग और सुपरविजन की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा मतलब ये जासूसी करने वाला नहीं है, और ना ही ये कि अच्छा मुझे पता है तू किस किस से बात करता है, मुझे पता है तेरे फ्रेंड्स के साथ क्या 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 तेरे चल रहा है, मुझे पता है तू कौन कौन सी लड़की से बात करता है। दैट्स नॉट द एजेंडा. एजेंडा इज टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन माय चाइल्ड्स लाइफ। और बहुत बारी जब आप बच्चे के साथ कनेक्ट होंगे, जैसे आजकल मदर्स घर पर हैं, फादर्स घर पर हैं, कई बार आप बच्चे का स्कूल का बैग संभालते होंगे, कोई कॉपी संभाली, कोई किताब संभाली, कभी बच्चे का फोन जो है वो उसने लॉक करना भूल गया, आपने उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ ली। बहुत बारी ऐसे मौके आएंगे, कोई ऐसा मटेरियल आपके सामने आ सकता है जो आपको कई बारी झटका दे दे, धक्का दे दे कि ये क्या है। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर आपके सामने आ सकते हैं जो आपको एकदम से लगे कि ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बेटी है और अगर आप देखते हैं कि आपकी बेटी किसी लड़के से चैट कर रही है, तो एज अ पेरेंट, चाहे आप मदर हैं या फादर हैं, इमीडिएट रिएक्शन मिले कि ये क्या है, अभी तो तुम बच्चे हो, ये तो कोई ये सब काम करने का तो अभी टाइम नहीं है, तुम कैसे तरफ जा रही हो, तुमने पढ़ना है या ये सब कुछ करना है। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट काइंड ऑफ थिंकिंग। सो ऐसा बहुत होगा जब आप बच्चे से कनेक्ट होंगे, बच्चा आपको अपनी लाइफ में जब एंट्री देगा, आपको मौका मिलेगा ये देखने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। बहुत सारा ऐसा मटेरियल आपके सामने आएगा, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आपके सामने आएंगे जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस सिचुएशन को आपने एक नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है। नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसी कोई भी चीज हमारे सामने आती है, जब ऐसी कोई भी चीज हमारे सामने आती है, तो हम एकदम से नी जर्क रिएक्शन देते हैं, हम एकदम से नी जर्क रिएक्शन देते हैं, हम एकदम से घबरा जाते हैं, हम एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। सपोज मेरी बेटी और वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो भी सिर्फ 10 या 12 साल की है, या उसका जो बात करने का कंटेंट है वो मैंने सुन लिया और वो मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत तरीका है बात करने का, शायद ये ठीक दिशा में नहीं जा रही। तो एज अ मदर हो सकता है मेरी नी जर्क रिएक्शन ये हो कि मैं बच्चे को थप्पड़ मार दूं, या मैं उसको गुस्सा कर दूं, या मैं उस लड़के को ब्लॉक कर दूं, या मैं उसके पेरेंट्स को फोन करके लड़के के पेरेंट्स को बोलूं कि how dare your son calls my daughter. These are all outdated ways of handling which will not help you. जिस दिन आप ये करेंगे, जिस दिन आप बच्चे को इस तरह से रिएक्ट करेंगे, अगली बारी बच्चा इससे स्मार्टली प्ले करेगा ताकि आपको उसकी गलती पता ना लग सके। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा ये जांचने का कि वो क्या कर रहा है। कभी भी जब बच्चे की गलती अगर आपके सामने आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है क्योंकि जिस तरह की लाइफ हम लोग लीड कर रहे थे अभी तक, there was hardly any time that we actually sat with our children and saw what was happening in their life. अब सडनली हम उनकी लाइफ में एंट्री भी चाहते हैं और कंट्रोल भी चाहते हैं, जो ये बच्चे नहीं देंगे, जो ये कभी भी नहीं देंगे। They will find ways to avoid you or to deceive you. But I have to be in their life if I want to make some changes in their life. So the solution is husband wife या फैमिली के सब लोग मिलकर बैठे, डिस्कस करें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचे, कारण ढूंढे, क्या रीजन है। हो सकता है बच्चे को घर पे अटेंशन नहीं मिल रही, हो सकता है घर पे टाइम नहीं कोई दे रहा, हो सकता है कोई सुपरवाइज नहीं करता, बच्चा नेटवर्क पे इंटरनेट पे चला जाता है, या कोई ऐसे मटेरियल उसके सामने आ जाता है जो बच्चे को एकदम से मिसगाइड कर सकता है या मिसलीड कर सकता है। सो बजाय इसके कि हम सडनली रिएक्ट करें, जो ज्यादातर हम लोग करते हैं, हम इसे सेंसिबली हैंडल करें, रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें। मैं भी ये भी कहूंगी कि गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो पास्ट है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक कर सकते हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स गिल्ट में चले जाते हैं, अफसोस करने लग जाते हैं कि मैंने बच्चे को टाइम नहीं दिया, या ब्लेम करने लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करते हैं, देखा तुम टाइम नहीं देती, तुम ध्यान नहीं देती, तुम हर टाइम फोन पर होती हो, तुम्हें अपने घूमने फिरने की पड़ी होती है। या हस्बैंड, जो वाइफ जो है वो हस्बैंड को ब्लेम करने लग जाती है कि आप सारा दिन बाहर रहते हो, मैं बच्चों को भी संभालूं, मैं घर का भी काम करूं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, हु विल हैंडल द चाइल्ड, आई कांट डू एवरीथिंग। सो दिस इज नथिंग बट blame game. We don't have to go into blame game. We have to sit together, deal with it seriously. So the tagline will be respond, not react. So don't react, but respond. So response will be sit with your spouse, husband wife बैठे बात करें, डिटेल को इसमें समझे, कैसे हैंडल करना है. It could be just a growing age issue. For example, infatuation. It's a very normal thing when kids are growing up. और अगर आप अपना भी बचपन याद करके देखें, आई एम श्योर आपको भी इन्फैचुएशन हुआ होगा. तो इन्फैचुएशन पे ओवर रिएक्ट करने की बजाय मे बी आई विल कीप दिस इन माई माइंड कि मुझे अपने बच्चे को इस बारे में एजुकेट करना है. तो मैं मौका देखकर कभी हंसते खेलते बच्चे के साथ बात करते करते मैं पहले अपनी इन्फैचुएशन की बात करूंगी, फिर मैं बच्चे की इन्फैचुएशन की बात करूंगी और कुछ गाइडलाइंस दूंगी कि बेटा देखो इस एज में ये नॉर्मल है, बट हाउ मच ऑफ टाइम एंड अटेंशन यू हैव टू गिव टू दिस, दैट इज समथिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट. अगर बहुत सारा ध्यान आपका इन चीजों में चला जाता है, बहुत सारे लड़के या लड़कियों से हम बातें करते हैं, तो आपका जितना टाइम है वो सारा इन चीजों में चले जाएगा, ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा. ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी, आपकी ग्रोथ पर उसका इम्पैक्ट आएगा. सो अगेन, डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट बिकम वेरी एप्रीहेंसिव या एग्रेसिव ना हो, या कई बार हम बच्चे पे मारने पे उतर आते हैं या शेम करने लग जाते हैं. टू द एक्सटेंट हम कई बार घर के बाकी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि देखो ये ऐसे करता है, देखो ये ऐसे करती है, देखो ये. दैट्स नॉट द राइट वे. What you are doing is you're shaming your child, and that's going to be detrimental not only to your child's mental health but also to your relationship. So ये आपके साथ ही होगा आजकल के दिनों में, स्पेशली जब आप घर पर हैं, बच्चे के साथ में हैं, तो आपको ये चीज बड़ी बड़ी सेंसिबली हैंडल करनी है. और एक बात है कि कई दफा जैसे मदर अगर हाउसवाइफ है और वो बाहर नहीं ज्यादा जाती, या अगर कुछ घंटे ज्यादा हस्बैंड से घर पर रहती हैं, तो मे बी बच्चे के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं. फादर्स कई बारी अगर उनका टाइम वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं और वो बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, तो हो सकता है कि उनका अपनी बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा उनकी डेवलपमेंट में या उनकी उसमें ज्यादा उनका रोल ना हो. बट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फादर्स टू मेक कनेक्शन विद देयर किड्स. स्पेशली लेट मी रिमाइंड यू, 8-9 साल के बाद में लड़कों को हैंडल करना मदर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिजिकली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो मदर के साथ कई बार जवाब देते हैं, बहस करते हैं, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी करते हैं. मदर्स उसको हैंडल नहीं कर पाती कई दफा, तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है. इन केस ऐसा कुछ आपके घर में है, तो आई वुड एडवाइज यू that the father should take the primary role of interacting with the son, because father will be able to handle firmly. मदर्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम और भी आती है, क्योंकि सारा दिन वो बच्चों के साथ रहती हैं, तो थोड़ी देर गुस्सा हुआ, फिर प्यार आ गया, गले लगा लिया, फिर गुस्सा कर दिया, फिर प्यार आ गया, गले लगा लिया. तो वो ये वाला जो हमारा बिहेवियर है ना, इस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को नहीं समझते या नहीं लेते. एज अ रिजल्ट वो मदर की बात को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं. मुझे एक स्टडी याद आई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि एक जगह पे कहीं पे एक स्टडी करी गई कि बच्चों को अलग अलग जो है ऑडियो क्लिपिंग सुनाई गई और उनकी ईजी रिकॉर्डिंग हो रही थी, ब्रेन वेव की रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही थी. तो हर क्लिपिंग पे कुछ ना कुछ जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ चेंजेस हो रहे थे. लेकिन जब मदर की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, उनकी मदर की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, तो कोई ईजी में चेंजेस नहीं थे. इसका मतलब है कि बच्चे ने कोई भी बात को रजिस्टर नहीं करा. सो मदर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बहुत ज्यादा टोकते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां बताते हैं, तो एज अ रिजल्ट आप बच्चे की लाइफ में उतना कंट्रोल वर्ड तो मैं नहीं यूज करना चाहूंगी, लेकिन जितना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो इन्फ्लुएंस आपका जो है वो लूज हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि आपका जो बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली तो हो, लेकिन मत भूलिए कि आप एक पेरेंट हैं और आपकी एक जिम्मेदारी है कि आपने बच्चे को एक लाइफ की डायरेक्शन देनी है, और मदर का बहुत बड़ा रोल है.
So you got to have that kind of balanced relationship, जहाँ प्यार की जरूरत है वहाँ प्यार देना है, और जहाँ थोड़ा सा फर्म होकर बच्चे को डील करना है वहां पर हमें फर्म होकर बच्चे के साथ डील करना जो है आना चाहिए। उसके अलावा अगर सपोज जैसे मैंने अभी बात करी कि आपने कुछ बिहेवियर ऐसे देखे जो ओके नहीं है या ठीक नहीं है, तो उसमें भी जैसे मैंने कहा कि हिट ना करें, उनको शेम ना करें या उनको इंसल्ट ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को कम्युनिकेट करेंगे कि आपका ये वाला व्यवहार जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, दिस हैज हर्ट मी। तो कई दफा आप देखिए, आप अगर चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते, आपके चेहरे से पता लगता है कि आपको बुरा लगा है, आप नोट करिएगा आपके बच्चे आपकी बात को ज्यादा वैल्यू करते हैं, वो ज्यादा आपको सुनते हैं या आपकी बात मानते हैं। तो एक बैलेंस्ड वे में जो है हमें जो है हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ऑफन होता है कि जैसे ही हम पेरेंट बनते हैं ना, तो हमारे सिर पर पेरेंट की बहुत सारी हैट्स एक साथ आ जाती है, तो वी आर कंप्लीटली इन द पेरेंट मोड, कंप्लीटली। एक्चुअली एज अ रिजल्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी और अपने पार्टनर की लाइफ को पॉज बटन पे रख देते हैं और सिर्फ हर चीज बच्चे के हिसाब से बच्चे के लिए करते हैं। उसको मैं किसी और सेशन में आपके साथ डील करूंगी कि कितना जरूरी है अपने आप को और अपने पार्टनर को लुक आफ्टर करना, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस इंस्टेंस पे मैं जो पॉइंट यहाँ लाना चाहती हूँ वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दो तरह की पेरेंटिंग ज्यादातर करते हैं, या तो हम बहुत ही नर्चरिंग पेरेंट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंटहुड नेचुरली इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर द चाइल्ड। So as a result, we are bound to give all the love that we have in our heart for the child. As a result, हम हर चीज बच्चे के लिए करना चाहते हैं, हर फैसिलिटी उसको देना चाहते हैं, हर कंफर्ट उसको देना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो उसको जरूरी नहीं भी है वो भी चीज उसको हम देना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट कई दफा हो सकता है कि बच्चा जो है वो हमारे पे डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे कहते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ अगर आप लगा देते हैं तो वो छोटा पेड़ ग्रो नहीं करता, क्योंकि बड़ा पेड़ उसकी सारी नीड को भी पूरी कर जाता है और उसकी बढ़ने की क्षमता को भी कम कर देता है। तो ऑब्जर्व करिएगा कि अगर आप कोई नर्चरिंग पेरेंट मोड में हर समय रहते हैं, जैसे मैंने कई बार देखा है, खाना ले लेकर मदर जो है आधा आधा घंटे बच्चे के पीछे फिर रही है, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, अपना खाना नहीं खाएंगी जब तक उसको खाना नहीं खिला लेंगी, है ना। या बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, उसके कपड़े भी हम खुद पहना रहे हैं, उसको नहला भी हम खुद रहे हैं, उसका बैग भी हम खुद पैक कर रहे हैं, हर एक चीज हम खुद कर रहे हैं। दीज आर ऑल साइंस ऑफ नर्चरिंग मोड। तो अगर हम, ठीक है बच्चा बहुत छोटा है जब नहीं कर पा रहा, दैट्स फाइन, पर बच्चा जब बड़ा हो रहा है तब भी उसका ये सारा काम अगर मैं कर रही हूँ तो बच्चा अपना ये काम करना कब सीखेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरू में हो सकता है, अगर आप बाकी एनिमल्स को देखें, अगर आप कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, बच्चा पैदा होता है, मदर उसको सबसे पहले जीना सिखाती है, अपने आप पैरों पे खड़ा होना सिखाती है, अपने लिए खाना ढूंढना सिखाती है, बिकॉज दे वांट देयर चाइल्ड और देयर यंग वन टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू लर्न टू बी सेफ एंड लर्न टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। इंसिडेंटली हम जो पेरेंट्स हैं, हम बहुत लंबे टाइम तक बच्चे को अपनी प्रोटेक्शन में रखते हैं। एज अ रिजल्ट आप देखिए कई दफा बहुत बड़े होने के बावजूद भी उन बच्चों के लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, अपनी सिचुएशन को उनको हैंडल करना नहीं आता है। जैसे घर में अगर बच्चा जरा सा रोता है, हम फट से उसको उठा लेते हैं, चुप कराते हैं, गले लगाते हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, उसका ध्यान बटाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को बड़े अच्छे से लुक आफ्टर किया। पर कल जब मेरा बच्चा बाहर पार्क में खेलने जाता है और जब वो गिर जाता है तो क्या कोई उसको उठाएगा या कोई उसको प्यार करेगा? या कल मेरा बच्चा स्कूल जाएगा जहाँ एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होंगे, किस टीचर के पास इतना समय होगा कि वो हर बच्चे को अलग अलग से 15-15 मिनट का टाइम देकर चुप कराए या उसको खाना खिलाए या उसके साथ बैठ के बातें करे। सो इसलिए बहुत जरूरी है, ये खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, दे शुड मेक श्योर दैट यू मेक योर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। तो बहुत ज्यादा नर्चरिंग मोड जो है ना, वो रक्षा में हत्या वाला काम करता है। दूसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है क्रिटिकल पेरेंटिंग स्टाइल। अब क्रिटिकल पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने,
बहुत बढ़िया हो, सबसे अच्छा हो, सब कुछ इसको करना आना चाहिए, हर चीज में अव्वल होना चाहिए, तो एज अ रिजल्ट हम हर वक्त बच्चे को कहते हैं तुम इससे बेटर कर सकते हो, ये इतना अच्छा नहीं है, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, और भी बढ़िया करके दिखाओ, तुम्हारे तुम्हारे 85% नंबर क्यों आए, तुम्हारे 90% नंबर क्यों नहीं आए। सो व्हाट वी आर डूइंग, इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं कि हम बच्चे को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उसको इम्प्रूव करने का तरीका जो है वो क्रिटिकल है, वो बच्चे के लिए डेट्रीमेंटल है। तो ये दोनों मोड अगर हम अपने बच्चों के साथ यूज कर रहे हैं, इवन आज के टाइम में, मैं लॉकडाउन टाइम की बात कर रही हूँ, तो ये बच्चे के लिए डेट्रीमेंटल है। बहुत नर्चरिंग है, हर चीज अगर आप उनको हाथ में पकड़ा रहे हैं, ट्रस्ट मी दे विल नॉट बिकम इंडिपेंडेंट। यहाँ तक कि मैं ये भी देखती हूँ कि स्कूल से अगर होमवर्क मिलता है, कई मदर्स होमवर्क करके भेज देती हैं, समर वेकेशन वर्क मिलता है, मदर्स बाहर से प्रोजेक्ट करवा देती है या खुद करके दे देती हैं। दीज आर ऑल वेज यू आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग देयर डेवलपमेंट, यू आर डूइंग हार्म टू योर चाइल्ड। या अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेरेंट मोड में है तो हर टाइम अगर बच्चे की गलतियां निकाल रहे हैं, और लॉकडाउन पीरियड में अगर आप क्रिटिकल पेरेंट मोड में हैं, तो ट्रस्ट मी आपका बच्चा आपके आसपास बैठना पसंद नहीं करेगा। जहां पर आप होंगे वो दूसरी जगह जाके बैठना पसंद करेगा। आप उसके पास अगर जाने की कोशिश करेंगे, वो बच्चा वहां से उठ के चला जाएगा। आप बात करना चाहेंगे, वो आपके नजदीक नहीं बैठना चाहेगा। सो वी गॉट टू रियली चेक कि इन दोनों के बीच में एक मिडवे है, एंड दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। ये और भी जरूरी है। अगर आप अपना बचपन याद करें या मैं अगर अपना बचपन याद करूं, तो शायद हमें ये वो दोनों तरह के पेरेंटिंग स्टाइल बड़े अच्छे लगते थे। अगर हमारी मदर बहुत नर्चरिंग टाइप थी और फादर बड़े क्रिटिकल टाइप थे, तो वो बैलेंस सा हो जाता था कि ठीक है, फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, मदर बहुत प्यार करती है। या घर में और भी बड़े सारे लोग होते थे, ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो उसमें मासी है, मामा है, बुआ है, चाचा है, दादा दादी है, तो उन सब का प्यार मिल गया, सब कुछ हो गया, तो मतलब ओके हो जाता था। लेकिन आज ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में अगर रह रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेरेंट मोड में है या नर्सरी पेरेंट मोड में है, बच्चा आपसे दूर हट जाएगा, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। वो या तो अपने फ्रेंड से कनेक्ट करेगा या सोशल मीडिया से कनेक्ट करेगा। तो जो मैं कह रही हूँ कि इन दोनों के बीच में एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग मोड है। वो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग मोड में आप बच्चे के साथ तो हैं, पर बच्चे के ऊपर नहीं चढ़े हुए, आप बच्चे को सफोकेट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को पीछे जासूसी नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़े हुए हैं कि यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ और मैं तो तेरे को बेस्ट बना के छोड़ूंगी, तुझे ये बन के दिखाना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी टैक्सिंग फॉर यू and also going to disturb your relationship with your kind. So what is responsible parenting? Be friendly but firm. When I say friendly but firm means हर वक्त टोका टाकी करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त गलतियां निकालने की जरूरत नहीं है। 10 चीजों में अगर 8 चीजें ऐसी हैं जिसपे बोलने की जरूरत नहीं है, तो मत बोलिए, हर छोटी बड़ी बात पे मत बोलिए। लेकिन कोई 2 चीजें आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे मेरा बोलना जरूरी है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वो 2 चीजों पे जरूर बोलूं। और एक बात और है, अगर 10 में 8 चीजों पे आप नहीं बोलेंगे और सिर्फ 2 चीजों पे बोलेंगे, तो बच्चा आपकी बात को सुनेगा भी और वैल्यू भी करेगा। सो आप फ्रेंडली भी हैं, 8 चीजों को आपने ओवरलुक कर दिया, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे ज्यादा हर वक्त लड़ने और झगड़ने की और डांट लगाने की और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई 2 चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है, उसमें अगर आप फर्म हो जाते हैं, तो बच्चे को पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे जो है वो दे नो हाउ टू हैंडल मी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो है सेट बाउंड्रीज। हर चीज की बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, चाहे वो खाने को लेकर है, चाहे वो टाइम स्पेंड करने के तरीके को लेकर है, चाहे वो बिहेवियर को है, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट को है, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए। और जब ये बाउंड्री सेट करने की बात कर रही हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट सेट करने की बात कर रही हूँ, तो याद दिला दूं कि सबसे पहले हमें इसे खुद फॉलो करना है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप अपने बच्चे को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आई एम रियली सॉरी टू टेल यू, आई मे बी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू यू, बट दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। सो जो चीज आप उनको करने के लिए कह रहे हैं, वो पहले आपको करके दिखानी पड़ेगी। अगर मैं बच्चे को कह रही हूँ कि ज्यादा टीवी देखना ठीक नहीं है, तो पहले मुझे अपनी प्रैक्टिस चेंज करके अपने अंदर ये लाना पड़ेगा कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूं, कहीं और मीनिंगफुली टाइम को यूटिलाइज करूं।
अगर मैं टीवी पर बैठी हूँ तो शायद मैं अपने बच्चे को टीवी या फोन से नहीं रोक पाऊंगी। इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि आपका जो बच्चे को डील करने का तरीका है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे का गला खराब है और मैंने बच्चे को कह दिया कि बेटा आपका गला खराब है, आप आइसक्रीम नहीं खाओगे। जैसे बच्चे ने आइसक्रीम मांगी और मैंने कहा नहीं बेटा आइसक्रीम आप नहीं खाओगे क्योंकि आपका गला खराब है। अब जब मैंने उसको कहा नेचुरली उसको आइसक्रीम खानी है तो अभी तो उसका बहुत मन कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो जिद करेगा, वो कोशिश करेगा कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। अब जब तो मैं फ्री हूं और मैं अपनी जिद पर अड़ गई कि भाई नहीं खानी, तो बच्चा रो रहा है, जो भी कर रहा है मैंने नहीं माना। लेकिन बाई चांस सपोज मैं फोन पर हूँ या मैं किचन में हूँ या कोई घर में गेस्ट आया हुआ है या मैं किसी इंपॉर्टेंट काम में लगी हुई हूँ और उस वक्त मेरे बच्चे ने आइसक्रीम के लिए जिद करी, तो मेरे पास अगर टाइम नहीं है या पेशेंस नहीं है तो 99.9% ऑफ द टाइम्स मैं एग्री कर जाऊंगी। अब एक टाइम पर मैं जिद पे अड़ी और दूसरे टाइम पर मैंने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया। जब भी आप इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन कंसिस्टेंट वे ऑफ हैंडलिंग। तो बच्चे को समझ आ जाती है कि जिद करने से, रोने से, लड़ने से, बहस करने से मेरी बात मानी जाती है। तो जो बच्चे हमारे जो ये वाले रॉन्ग बिहेवियर पिक करते हैं ना, ये बेसिकली हम खुद ही इसके प्रेसिडेंस सेट करते हैं और उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। अगर एक कंसिस्टेंटली आप एक चीज के लिए कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि गला खराब है तो आइसक्रीम नहीं खानी, तो आपके हस्बैंड भी यही बात कहेंगे कि भी मम्मी अगर कह रही है कि आपका गला खराब है और आइसक्रीम नहीं खानी तो मैं आपको आइसक्रीम नहीं लेके दे सकता। अगर आपको कुछ और खाना है मैं लेके देने के लिए तैयार हूँ, बट आई विल नॉट लेट यू हैव आइसक्रीम। सिमिलरली घर के बाकी जितने लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, चाचा है, बुआ है, सब अगर एक ही बात कहेंगे तो बच्चे को समझ आती है कि मुझे अगर मेरी गलत चीज को कोई भी हावी नहीं करेगा। ज्यादातर जो बच्चे बिगड़ते हैं उसका कारण यही है कि मम्मी ने अगर कोई चीज मना करी और बच्चा रोने लग गया तो पापा कहेंगे चलो ले देते हैं, या दादा दादी में से कोई कहेगा चलो बच्चे को मत लाओ ले दो। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि अल्टीमेटली जो है बच्चे को समझ आ जाती है मम्मी नहीं मानेगी तो पापा मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे तो दादी मानेगी, नहीं तो दादा मानेगा, नहीं तो घर का कोई तो मानेगा ही मानेगा। तो इस चीज में ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा जो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है कि जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं वो एक होना चाहिए। अगर मैं कह रही हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं दिन भर झूठ बोल रही हूँ तो मेरे बच्चे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि झूठ बोलना है लेकिन मानना नहीं है या कहना नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इन दोनों टर्म्स में मैं आपको जो कह रही हूँ। दूसरा ये है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो मैं जिसका मैं नाम आपको बताना चाहूंगी। मेरे ख्याल से आपको एक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा होगा। अच्छा तो ये होता है कि अगर आपके पास में सबके पास कॉपी पेन होते हैं कुछ, oh very nice, very nice, I'm glad that you are holding a pen or this thing with you. So अगर आप कुछ टिप्स जो मैं दे रही हूँ ये मेरी अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं। ऑफ कोर्स मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ वो है ही है, लेकिन एज अ पेरेंट जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने सीखा अपनी गलतियों से या जो चीजों को मैंने चेंज करके सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर ये टिप्स अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये रामबाण की तरह आपका काम करेंगे। सो जस्ट मेक नोट्स ऑफ इट। तो दूसरी जो चीज मैं कहती हूँ कि वो ये है कि बच्चों की कमियों से कहीं ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें, उनकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करें। अब जैसे अगर आजकल आप बच्चों के तीनों साथ टाइम रोटी भी चाहिए तुम्हें और चॉइस सुधा कीर्ति जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर फोन ऑन द साइलेंट मोड, म्यूट मोड पे कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने आपकी खाने की बात सुन ली है। ओके सो जैसा मैं कह रही थी कि एक बहुत अच्छी बुक है, मैं आप उस बुक का नाम जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। 1 मिनट मदर और एक और बुक है 1 मिनट फादर। फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड हो जाएगा। इट्स बाय आई थिंक स्पेंसर जॉनसन, ऑथर का नाम बता रही हूँ, स्पेंसर जॉनसन। 60-70 पेज की बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। वेरी ब्यूटिफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग योर किड। और स्पेशली अगर आपके बच्चे के साथ आपके रिलेशन खराब हैं, डिस्टर्ब्ड हैं और आप उनको ठीक करना चाहते हैं, और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ ट्राई कर सकते हैं, इन लॉज के साथ ट्राई कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। और ये भी रामबाण की तरह है जो मैंने बहुत बारी ट्राई करा है। तो बड़ी ब्यूटीफुली उन्होंने 4
चीजें उसने बताई हैं जो मैं आपको जस्ट में यहाँ बता रही हूँ, लेकिन आप किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल देकर राइटर ने समझाया है वो आपको बहुत एनलाइटनिंग होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। उन्होंने 4 स्टेप्स में बताया कि सबसे पहले तो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बड़ा क्लियरली फैमिली को पता होना चाहिए। परिवार के हर व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि फादर को कैसे बिहेव करना है, मदर को कैसे बिहेव करना है, बच्चों को कैसे बिहेव करना है, बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट पहले क्लियरली स्पेल आउट होना चाहिए। दूसरा जो है वो ये है, कैच देम डूइंग समथिंग गुड। होता क्या है, बच्चा जब घर आता है, चाहे वो कितना भी खुश आता है, चेयरफुल आता है, लेकिन अगर उसके कपड़े गंदे होते हैं या बैग कहीं से फट गया या उसकी पानी की बोतल कहीं रह गई, तो सीधा ध्यान हमारा उसके कपड़ों पर जाएगा या शूज पर जाएगा और मुंह से एकदम निकलता है, ये क्या करके आया है, कपड़ों को क्या करा तूने, ये बैग कैसे फट गया, तेरी पानी की बोतल कहाँ है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इमीडिएटली फाइंडिंग देयर फॉल्ट। पूरा अपना लेंस चेंज कर लीजिए। जैसे चश्मा मैंने लगाया हुआ है, इस चश्मे को बदलकर एक सुंदर सा चश्मा लगाएं जो सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे की अच्छाइयां दिखाए। तो बड़ी माइंडफुली आपने देखना है कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटीज है। हो सकता है उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकता है उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है वो अपना बैग बहुत अच्छे से सेट करता हो सकता है वो अपने शूज बहुत अच्छे से रखता हो, कुछ भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। हजारों चीजें होंगी जो हमारे बच्चे में अच्छी होंगी। सो कैच देम डूइंग समथिंग गुड, ये नंबर 2 है जो मैंने बताया है। नंबर 3 जो है वो है अपलॉड, एप्रिशिएट, और दिल खुले खुले दिल से, दिल भर के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने इसको कैसे यूज करा। आई रिमेम्बर कि हम लोग एक बारी किसी फ्रेंड के यहाँ पे डिनर के लिए गए। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। हम लोग इकट्ठे अपने बच्चों के साथ उनके घर खाने के लिए गए। तो मेरी 2 बेटियां, जैसे मैंने आपको बताया, तो बड़ी वाली बेटी उस वक्त 18-19 साल की होगी, छोटी वाली उससे थोड़ी छोटी है, 12-13 साल की होगी। 6 साल का फर्क है दोनों बच्चों के बीच में। तो हम लोग वहां से जब गए, खाना वाना खाया, हम वापिस आ गए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे स्पेशली फोन आया उनका, जो उनकी वाइफ थी, जो हमारा मतलब जो हमारा कपल जो फ्रेंड था हमारा, तो उनकी जो वाइफ थी उनका मुझे फोन आया। तो उन्होंने कहा कि इंदु, आई वांट टू गिव यू वन फीडबैक। तो मैंने पूछा कि क्या है। तो उसने मुझे बोला कि इंदु, कल मुझे डिनर कराने में बहुत मजा आया, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई एंजॉयड इनवाइटिंग यू ओवर डिनर। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या था कि जो तुझे बहुत अच्छा लगा। शी सेड कि जब भी मैं अपने घर पे डिनर करती हूँ, मेरी बहन के लिए या मेरी ननंद के लिए या मेरे देवर के बच्चों के लिए, जब भी वो लोग आते हैं तो वो आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो टेबल लगाना, खाना लगाना, खाना प्लेट्स में डाल के देना, फिर बर्तन वाइंड अप करना, वो सिर्फ मेरा और मेरी मेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब लोग जो है वो बैठकर खाना खाते हैं। तो कई बार बड़ा टायरिंग हो जाता है, स्पेशली क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं और दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। तो कई बार बहुत टायरिंग हो जाता है कि खाना बना के तो रखा ही है, फिर अब टेबल पे लगाओ, फिर उनको डाल के हर एक के हाथ में प्लेट पकड़ाओ, फिर उनके हाथ से खाना पकड़ो, फिर जाके सारा वाइंड अप करो। तो कहने लगी पहली बारी मतलब मुझे इतना मजा आया कि तेरी बेटियां जो तेरे साथ आई थी, उन्होंने आकर जो है, मतलब जैसे ही मैं किचन में खाना लगाने के लिए गई, दे इमीडिएटली केम अप टू मी इन द किचन एंड सेड कि आंटी आप बताओ हमें क्या हेल्प करनी है। तो मैंने उनको मना भी किया, उन्होंने कहा नहीं आंटी, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जाकर उन्होंने जितना भी उन्होंने बर्तन जो पकड़ाती गई वो लाकर उन्होंने टेबल पर लगाया, खाने के बर्तन लगाए, पानी वानी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। फिर जैसे ही खाना सब खत्म हुआ, उन्होंने पूरी उनको टेबल जो है वो वाइंड अप करने में उनको बड़ी हेल्प करी। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज ए पेरेंट डेफिनेटली यू फील प्राउड व्हेन योर किड्स डू, बट आई यूज दिस टू माय एडवांटेज एंड टू देयर एडवांटेज। आई टोल्ड दिस टू माय किड एंड आई डिडंट टेल इट वंस, आई टोल्ड देम ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। उसका फायदा ये हुआ कि आज भी अगर हम कहीं जाते हैं या मेरे घर पर अगर कोई आ जाता है, मेरे बच्चे इमीडिएटली खड़े होकर दे विल हेल्प मी इन डूइंग एवरीथिंग इन द किचन. So very mindfully, you have to choose occasions when you can see them doing something different, doing something good. So मैंने जैसे कहा कि अपना लेंस चेंज करिए, अपना बच्चों को देखने का नजरिया चेंज करिए, गलतियां छोड़ दीजिए, वो हो जाएंगी। आप में भी बहुत गलतियां थी, मुझ में भी बहुत गलतियां थी, ठीक हुए हैं ना, आज हम अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छा करेंगे। फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, ये स्टेप था 2। तीसरा था एप्रिशिएशन, जो मैंने आपको बताया। चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने बच्चे के व्यवहार में कोई गलती या कमी दिखती है, नेवर
never correct them publicly in front of others. अलग से, आराम से, शांत मन से बैठकर बोले जो चीज आपको बुरी लगी है, जरूर बताएं। जैसे मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है, बच्चों को सिखाना जरूरी है, जरूर सिखाएं, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम हाउ इट हैज टू बी डन। मुझे इससे एक और इंटरेस्टिंग बात याद आई। आई रिमेम्बर मेरी छोटी वाली बेटी जो है, उसके कुछ फ्रेंड्स घर पर आए हुए थे और हम सब इकट्ठे थे, मैं बच्चा उनके रूम में चली गई, तो मेरी बेटी ने किसी बात को लेकर मुझ पर मजाक करा, जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि फ्रेंड्स के सामने, जिनको मैं नहीं जानती या जो मुझे नहीं जानते, उनके सामने आई मीन व्हाई डिड शी मेक मेंशन ऑफ एनीथिंग ऑफ माइन। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किस बात पर उसने बोला, बट मैंने उस वक्त उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बाहर आ गई, क्योंकि मुझे उस वक्त लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एड्रेस इट। बट लेटर ऑन जब मैं और वो इकट्ठे बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा नानकी, आज जब आपके फ्रेंड्स आए हुए थे तो आपने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे ये बात बोली जो मुझे बुरी लगी, जो मुझे लगा कि इट वाज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन मैं एक बात आपसे कहती हूँ, सपोज अगर मैंने आपके फ्रेंड्स के सामने आपको उसका जवाब दे दिया होता, या मैंने आपकी कोई और गलती उससे जुड़ी हुई बता देती, तो आपको कैसा लगता? That one incident was enough for me to communicate to her that there is a code of conduct and each one of us has to follow. I followed it, I demonstrated, and then I made her understand. बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, so we have to give them that space and time, but we also have to teach them the right way of doing. Incidentally, नीतू मैम, with all due respect to the education system, क्योंकि मैं किसी स्कूल को ब्लेम नहीं कर रही या मैं किसी उसको ब्लेम नहीं कर रही, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं पूरी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये बात कह रही हूँ, वी आर कंप्लीटली फेलिंग इन टीचिंग देम द राइट वेज ऑफ लाइफ। हमारा इतना एम्फेसिस सब्जेक्ट्स पढ़ाने में है, परसेंटेज के ऊपर है, मार्क्स के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, कि जो टेस्ट जिंदगी ने उनके लेने हैं, उन टेस्ट की तो हम तैयारी बिल्कुल भी नहीं कराते। बोलना आना चाहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बिना गुस्सा किए मुझे अपनी बात कहनी आनी चाहिए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना आना चाहिए। जब सामने वाला मेरे साथ बुरी तरह व्यवहार कर रहा है, मैं बिना बुरी तरह व्यवहार करे उसको कैसे कम्युनिकेट करूं कि मुझे बुरा लग रहा है, ये मुझे आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। ऐसे हजारों स्किल्स हैं जो हम सबको आने चाहिए, जो कि बच्चों को हम नहीं सिखा रहे, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको हमने सुंदरता से इंटीग्रेट नहीं करा है। मैं ये नहीं कह रही कि सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इट्स अ लॉपसाइडेड टीचिंग। मुझे नहीं याद कि जो ज्योग्राफी या फिजिक्स या केमिस्ट्री या जो बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कभी स्कूल में पढ़े थे, वो मेरे आज की डेट में कितने काम आए हैं। लेकिन जितने ज्यादा जरूरत आपको लाइफ स्किल्स की आती है, एडजस्टमेंट की आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की आती है, जो कि आए दिन हर रोज हमें पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो चाहिए होता है, उन सब चीजों को कहीं पर भी हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी हम इनकलकेट नहीं कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को इन सब में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टॉपर होने चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए इन सब चीजों पे। मेरे बच्चे का बिहेवियर तो एग्जाम्पलरी होना चाहिए, मेरे बच्चे का तो कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का हर बच्चा जो है वो मेरे बच्चे के सामने फेल हो जाए। पर कहाँ हम ये सिखा रहे हैं, कहाँ इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस जो आज टॉप लेवल पर हैं, मुझे नहीं पता कि आपको अंदाजा है कि नहीं, बहुत मेहनत और रिहर्सल के बाद वो वहां पहुंचते हैं। But are we giving this opportunity to our children to learn these things? And then we expect them to display all these qualities when they are leading their life. And unfortunately, therefore, these kids are failing on these fronts because हम उनको ये values नहीं दे पा रहे। So I think as parents, as teachers, as society, it's our duty to inculcate these values. Subjects तो टीचर भी पढ़ा देंगी, लेकिन जरूरी है कि हमारा ध्यान जो है वो इन वैल्यूज पर बच्चों के लिए रहना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जितना भी अब मैं थोड़ा सा इस बात पर लाना चाहती हूँ कि टीनेजर्स के साथ हमें कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि
छोटे बच्चों को तो हम फिर भी संभाल लेते हैं, डांट डपट के अपने हिसाब से मेंट कर लेते हैं। जरा से बड़े पर हो जाते हैं या मेरे कंधे तक आ जाते हैं तो इनको तो पकड़ ही नहीं सकते, ये तो हमें धक्का मार देती हैं या बहस करते हैं या गुस्सा होकर चले जाते हैं। आई थिंक दीज आर ऑल कॉमन प्रॉब्लम्स, हम सब लोग एक ही बोट में हैं एंड ऑल ऑफ अस आर काइंड ऑफ फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट नोट करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बड़े होने वाले हैं, तो आपको ये जो मैं गुरु मंत्र देने जा रही हूँ ये बहुत काम आएगा। एक 1 पॉइंट एजेंडा रखिएगा। एजेंडा इज टू गेट एंट्री इन देयर लाइफ। ये एजेंडा याद रखना है कि आई हैव टू गेट एंट्री इन माई चाइल्ड्स लाइफ, और इफ आई ऑलरेडी हैव एन एंट्री आई हैव टू स्टे इन माई चाइल्ड्स लाइफ। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी बच्चे की लाइफ में एंट्री नहीं मिली या आपको अपने बच्चे ने अपनी लाइफ से आपको साइड लाइन कर दिया, आपकी सारी वो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी जिसमें कि आप उनको सही वैल्यूज या सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एंट्री कैसे मिले। बच्चे अगर छोटे हैं फिर भी शायद अभी आप ट्राई कर पाएंगे, जो बड़े बच्चे हैं उनकी लाइफ में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपना दरवाजा काफी हद तक बंद कर देते हैं और इतना सा ही खोलते हैं जिसमें से सिर्फ वो देखकर आपसे बात करें, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते या अब उनके घर के अंदर कमरे के अंदर नहीं जा सकते। इस केस में जरूरी ये है कि ढूंढिए आपके और उनके क्या कॉमन इंटरेस्ट है, ऐसी क्या चीज है जो बच्चे को अच्छी लगती है और आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी books that the child likes to read. It could be a TV program that your child likes to watch. It could be even Maggie that your child enjoys to eat. It could be a cold drink or a coffee that your child really, really loves. It could be if the child is fond of, dancing or music or painting, anything that your child likes. Go down to their level. Spend time with them. और जब आप उनके साथ हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी ऑफन आई स्पेंड टाइम विद माई यंगर डॉटर हु इज विद मी। सारा दिन वो शी इज वर्किंग फ्रॉम होम, मेरा भी सारा दिन अपने वेबिनार्स और अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो वी मेक श्योर दैट ड्यूरिंग द डे वी गेट सम टाइम टू बी टुगेदर। तो हम कुछ ना कुछ, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम जो है या कोई ऐसी मूवी जो हमें देखनी अच्छी लगती है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मूवीज में टाइम वेस्ट करने के लिए मना करती हूँ और मैं खुद भी नहीं करती हूँ, बट समथिंग दैट इज कॉमन दैट यू एंड योर चाइल्ड कैन एंजॉय। और जब वो आप करें तो प्लीज अपनी पेरेंट हैट थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिएगा। जस्ट बी देयर फ्रेंड, डोंट फाइंड फॉल्ट विद देम, डोंट इंस्ट्रक्ट देम। अगर आपने कोई गलत चीज उस वक्त ऑब्जर्व भी कर ली है कि हाँ भी ये तो बड़ी गलत बात है, नोट कर लीजिए, मेंटल नोट बना लीजिए, लेकिन उस मोमेंट को खराब नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त अगर आपने वो इश्यू पिक करा वो बात का बतंगड़ बन जाएगा, बच्चा अपना दरवाजा आपके लिए बंद करके बाहर लगा देगा, नो एंट्री। So you got to make sure that you find some common interest with your child. This is not only for the mothers, this is rather more for the fathers, because you need to get entry in your child's life. And especially with boys, बहुत सारी चीजों का बच्चों को सिखाना जरूरी है, उनको एजुकेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, मीडिया यूजेस की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, हाउ मच, वेयर ऑल, इंटरनेट की बात करते हैं, ये सब कुछ, ये सारी गाइडलाइंस आप सिर्फ तब दे पाएंगे और बच्चा सिर्फ तब सुनेगा जब आप उसका ये ट्रस्ट विन कर लेंगे that my parent are my well wisher and they are not finding fault with me, they are giving me the right guideline. तो इसके लिए सबसे पहला जो है कि spend time with them, find your common factors which ढूंढना शुरू करिए, एक दो करके ढूंढिए। कुछ नहीं है तो एक आदत बनाइए कि घर के जितने लोग हैं बैठकर लूडो खेलेंगे या कैरम खेलेंगे, and you will find some commonality between you and your child. और अगर उस वक्त आप गलतियां नहीं निकाल रहे, डांट नहीं रहे, तो बच्चा आपके साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। Child will start enjoying spending time with you. So this is one way I always say, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। अगर मॉडर्न स्कूल में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। मैं जब
जब नानकी जो है बाराखंबा में जाती थी, तो बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी थी जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। एज अ पेरेंट हर एक की अपनी वैल्यूज होती हैं जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हो, जो मुझे कई बार एक्सेप्टेबल नहीं होता था। बट देन आई रियलाइज कि अगर मैंने अगर उसको एक ऐसे स्कूल में डाला है जहां पर डिफरेंट वैल्यूज प्रैक्टिस होती है, तो ये गलती मेरी है, मेरे बच्चे की नहीं है। सो आई कांट पनिश माई चाइल्ड फॉर दैट. So I came down from that level and I thought, if I have a role to play in her life, I will be able to give her right values and right direction. So if you are able to find some common ground where you can spend time, you will definitely get a chance where you can build, a wonderful bond with your child and, get entry into their life. अब इस वक्त मैं 2 मिनट स्पेंड करना चाहती हूँ लॉकडाउन पीरियड के बारे में बात करते हुए, कि इस वक्त जब हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, जैसे मैंने कहा, स्पेंड टाइम विद देम, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स, यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद योर किड्स। सबसे उसमें जरूरी बात ये कहना चाहती हूँ, प्लीज चेक योर ओन स्लीपिंग पैटर्न। आर यू स्लीपिंग ऑन टाइम? क्योंकि बहुत बारी मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे सोते ही नहीं है, बच्चे नहीं सोते इसलिए हम जागते रहते हैं। मैंने कहा कितने बजे सोते हो? जी बच्चा 2:30-3 बजे तक नहीं सोता, तो हम भी उसके बाद ही सोते हैं। या कई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सुलाकर कहते हैं अब हम मूवी देखेंगे। मतलब इस तरह का हम जब ऐसा लाइफस्टाइल हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका नुकसान ही होता है। पहली बात, जब तक आप नहीं सोएंगे आपका बच्चा नहीं सोएगा। अगर आप टाइम पर सोएंगे नहीं, सुबह जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे। जब तक आपको 6-8 घंटे की नींद मिलेगी, बच्चा फ्रेश नहीं होगा, आप भी फ्रेश नहीं होंगे। चिड़चिड़े उठेंगे तो नेचुरली गुस्सा एक दूसरे पर होगा। तो कोशिश ये करें कि जो स्लीपिंग पैटर्न है अपना ठीक कर लें। एक बारी मुझे ऐसे ही मैं फिर अपना एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी और मेरी पहली वाली जो बेटी थी, तो शुरू में रात को सोने में वो भी बहुत तंग करती थी कि उसका मन होता था कि मुझे खिलाओ या मेरे से बातें करो। एंड आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब एट दैट टाइम। सो मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे तो सुबह 6 बजे उठना है, और अगर मैं इसके साथ रात को 2-3 बजे तक जाऊंगी तो मैं सुबह कैसे अपने जॉब पर जा पाऊंगी। तो हम क्या करते थे, हम लाइट बंद कर देते थे और बच्चे को हम बीच में सुला देते थे, मतलब बिठा देते सुला देते थे। तो शी विल नॉट स्लीप, शी विल ट्राई टू वेक मी अप, शी विल ट्राई टू वेक माई हस्बैंड, बट वी विल मेक श्योर कि हमने उठना नहीं है। एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स इवन शी वुड गो टू स्लीप। सो सिमिलरली, अगर आजकल लॉकडाउन टाइम है, मैं ये तो नहीं कह रही कि 9 बजे ही सुला दीजिए, पर मैं ये भी कह रही हूँ कि रात को ये नहीं कि आप 2 बजे तक जाग रहे हैं, 3 बजे तक जाग रहे हैं, देन आपका नेक्स्ट डे ठीक तरह से शुरू नहीं होगा। स्पेशली बच्चों की, मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे फ्रेश ही नहीं होंगे, अटेंटिव ही नहीं होंगे क्लास में, लर्निंग नहीं होगी उनकी अगर वो उस तरह से नहीं है। दूसरा ये है कि खाने को लेकर जैसे प्रॉपर आपका मील टाइमिंग्स है, उन मील टाइमिंग्स को फॉलो करें ताकि बच्चों का खाने का रूटीन बना रहे। इस वक्त अगर बहुत नुक्ताचीनी आप खाने में करेंगे तो योर किड्स आर ऑब्जर्विंग यू एंड दे आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग। सो आपको ये भी ध्यान रखना है। पढ़ने की जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एज पेरेंट्स मैं आप सबको कहूंगी कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू योरसेल्फ एंड फाइंड व्हाट यू वांट टू डू। आपकी भी एक बकेट लिस्ट होगी, उस बकेट लिस्ट को निकालिए और देखिए कौन सी किताबें थी जो आपने पढ़नी थी, कौन सी हॉबीज थी जो आप परस्यू करना चाह रहे थे। If you ask me, trust me, in the last one month or so, little more than 1 month, of course initially 1 week even I was very confused ki how do I utilize my time, but after 1 week I got to realize ki this may go on, I don't know for how long, but I can't allow my time to go waste. मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, मैंने कोई अपने घर पे इस वक्त कोई हेल्प नहीं रखी हुई, बिकॉज आई वांट देम टू बी सेफ, आई वांट माय फैमिली टू बी सेफ। सारा घर का काम हमारी फैमिली के ऊपर है, बट मेरे ख्याल से अकेडमिकली, प्रोफेशनली जितना काम मैंने इस 1-1.5 महीने में करा है, शायद पिछले 1 साल में नहीं करा। So that's how you have to set example for your kids how to utilize that time. अगर आप अपनी हॉबी परस्यू करेंगे, बच्चे आपको देखकर ऑटोमेटिकली वो लर्न करेंगे। जितना टाइम मेरे पास अगर होगा, मैं फोन पर हूँ या मैं टीवी पर हूँ, तो डेफिनेटली मेरा बच्चा सीख रहा है कि मम्मी भी जितना टाइम फ्री होती है वो ये करती है, हमें भी यही करना है। सो यू गॉट टू रियली चेक योरसेल्फ इन दैट। देन घर के जो छोटे छोटे काम है, या rather जितने भी घर के काम है, उनकी पूरी लिस्ट बनाइए और बच्चों को साथ बिठाइए, हस्बैंड वाइफ साथ बैठे, एंड ऑल ऑफ यू टेक चार्ज कि इसमें से कितना काम, कौन सा काम कौन कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं और उनको हम एंगेज कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग देम क्लोज टू यू एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका भी शायद थोड़ा सा बर्डन तो कम होगा अगर आप उनको थोड़ा सा उनको अपने साथ हेल्प करने के लिए मोटिवेट करेंगे। बहुत कुछ है कहने के लिए, मुझे लगता है कि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी 12:15।
आई थिंक आई एंड माई सेशन हियर. बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कुछ आपके सवालों में भी आएगा जो आप पूछना चाहेंगे. तो मेरे ख्याल से मैं सेशन को यहाँ एंड करती हूँ. एंड आई वुड टेक द क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव. Should I look into the chat for the questions? Ma'am, we will be reading out the questions for you, Indu ma'am. Oh, that will be really nice. That Yes, will be really nice. Vanita ma'am would be doing that. As of now, I have a couple of questions as my queries and some questions which I have received from parents as well. Sure, ma'am. Bataiye. First one is that when we talk about acceptance and rejection, both are the two sides of a coin. So how is it possible to train a child to accept rejection also very positively so that he can move on? Life doesn't stop. That is what we have to train our children. But how can parents put it across? How can teachers put it across to them? See, I think more than rejection, I think to start with is if somebody gives us a feedback that it is not all right. I think पहला तो शुरुआत यहाँ से होती है ना, कि when we are given this feedback कि ये आपका गलत व्यवहार है या this is not okay, this is not acceptable, है ना. Rejection की बजाय हम not acceptable वाला word लेते हैं. So when we are focusing on any behavior that is not acceptable, as a child we have to accept, because child needs unconditional love. But at the same time, you got it to make your communication very clear to your child. I love you a lot, but this behavior of yours is not okay. One. Second is, how do you handle non-acceptance? कई बारी हमारे साथ भी तो होता है ना. अगर मेरी किसी बात पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये गलत है, या आपकी वाइफ ने कहा कि ये बात गलत है, how do you react to it? तो बच्चे उस चीज को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी गलती कोई बात कर आपके स्पाउस ने आपको कहा कि आपकी ये बात गलत है और आपने कहा हाँ मैं मानती हूँ ये गलत है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी. सो व्हाट यू हैव शोन टू योर चाइल्ड इज कि इफ यू आर रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग कि यस आई एम रॉन्ग एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. सो एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, ऑनेस्टली keep a hand on your heart and ask yourself, how many times do you admit in front of your child कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. चाहे इन दी हार्ट ऑफ हार्ट हमें पता होता है कि हमने ये गलत करा या हमने गलत किया, बट अगर हम उन बच्चे के सामने कहते हैं हाँ बेटा ये मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, दैट्स द बेस्ट वे टू टीच चाइल्ड हाउ टू हैंडल criticism or feedback or extreme is rejection. Extreme is rejection. Ma'am, thank you. Connecting to this question is the other one, that should the children be a mirror image of the parents? Yes, no. And if it is a no, then how to bring the child out of this complex, who continuously is under the pressure that my parents are wanting this to be, and I am not able to express myself fully, whether it is in front of the parents or whether it is in front of the teachers. So because children do approach our teachers in school that I am not wanting to do this, but because of the pressure at home, I am forced to do. So how do we handle these situations? Because I understand that parents are also wanting the best for their child. So how do we bridge this gap? मैम आपने दो बातें एक साथ ली हैं. आपने कहा कि should children be mirror image of the parents or not? जी. There is no scope for should. Actually, children are mirror image of their parents in terms of their values and behavior. Because हम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, अल्टीमेटली बच्चे की वैल्यूज उसकी फैमिली से आती हैं. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी बात करूं तो स्कूल में बच्चा शायद सिर्फ 6 घंटे रहता है या 7 घंटे रहता है. ऑन दी अदर हैंड 18 घंटे बच्चा मेरे पास रहता है. मेरे घर का क्या माहौल है, मैं किस तरह से उस बच्चे को पाल पोस रही हूँ, वो ज्यादा उस पर इन्फ्लुएंस करेगा रेदर देन द स्कूल एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स स्कूल एनवायरनमेंट हैज अ रोल टू प्ले, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेजरली आई थिंक it is your home, it is your family environment that has impact on it. सेकंड जो आपने पूछा, जो मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछा, तो उसका मुझे समझ आया कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जहां पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों से पूरा करते हैं या उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि मेरा बच्चा ये बने, और वो उसके लिए बच्चे को फोर्स करते हैं कि यू बी लाइक मी. अगर मैं सीए हूं तो मेरा बच्चा सीए होना ही चाहिए.
या मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर होना ही चाहिए, या मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो मेरा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन होना ही चाहिए। तो पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ 2 थिंग्स। मेरे ख्याल से दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात समझनी ये जरूरी है, एवरी इंडिविजुअल इज ए डिफरेंट, इवन योर चाइल्ड is an individual. That child has likes, dislikes that may not be like exactly yours. ठीक है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन आपका है, लेकिन जो इस वक्त वो है आपके सामने, वो एग्जैक्टली आप नहीं हो। वो एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट सोल है। हम ज्यादातर सोचते हैं कि वो शरीर है, वो एक सोल है जो एक जर्नी पर है, उसका अपना एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, पास्ट वैल्यूज हैं, पास्ट डिजायर्स हैं, पास्ट विशेस हैं, पास्ट स्ट्रेंथ्स हैं, पास्ट वीकनेसेस हैं। एक बहुत सुंदर पोएम है अंग्रेजी में, मुझे उसका राइटर नहीं ध्यान आ रहा, पर वो यही कहते हैं कि बच्चा जो है वो ईश्वर की धरोहर है, आपका उस पर एक्चुअली कोई अधिकार है ही नहीं। हमारी ड्यूटी सिर्फ उनको एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी दिशा देने की है। बाकी जो उन्होंने बनना है वो ईश्वर ने ऑलरेडी तय करा हुआ है। एज अ पेरेंट आवर ड्यूटी इज जस्ट टू फैसिलिटेट दैट। जस्ट बी अ गुड पेरेंट टू योर चाइल्ड, child will automatically grow. You just need to facilitate, you just need to make sure that what is required is provided. I am not asking you to give things in materialistic way. मेरा तो thumb rule ये रहता है, spend half the money and double the time with your child. Ma'am, sometimes what happens is that the child comes under a lot of peer pressure. Now that brings in a lot of anxiety in the child and amongst the parents, because parents at one point of time are wanting to tell them their values and the way it should be, whereas on the other hand the child does not feel comfortable that no, you know, if we talk about materialistic things, then okay, I want this, so I want this. So how is it possible that these things should be made understood to the children? देखिए, जब कांच और पत्थर टकराता है तो टूटता हमेशा कांच ही है। तो जो कच्चा होगा वो टूटेगा, जो पक्का होगा वो मजबूत रहेगा, वो टिका रहेगा। बच्चा जब स्कूल से कुछ ऐसी चीजें लेकर आता है जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कहते हैं, या स्कूल का इन्फ्लुएंस कहते हैं, एज अ पेरेंट अगर मैंने अपनी वैल्यूज को ठीक से सेट करा हुआ है और अगर मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चे को ठीक वैल्यूज को रियलाइज करवाने में। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। माय यंगर वन जो कि मॉडर्न से पढ़ी है, तो जब वो 6th में आई और 12 खंबा में गई, तो स्कूल में जब दिवाली मेला होता है, तो शुरू में जिस दिन जब पहली बारी दिवाली मेला था, तो शी सेड कि मम्मी फलाने दिन को दिवाली मेला है, सो यू गॉट टू गिव मी सम मनी बिकॉज वहां पे बहुत खेलना मिलना होगा। मैं काफी पुरानी बात कर रही हूँ, तकरीबन समझ लीजिए ज्यादा नहीं तो 15 साल से भी ज्यादा पुरानी बात कर रही हूँ, बिकॉज शी इज ऑलमोस्ट नाउ 25, सो इतनी होगी मेरे ख्याल से उस वक्त की बात है, ये 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ। सो मैंने उसको पूछा कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा जितने आपको देने हैं दे दो। तो मुझे उस वक्त मुझे लगा कि 200-300 रुपया काफी है, बच्चों ने करना क्या होता है, खाना पीना है, छोटा मोटा कोई गेम्स वेम्स करेंगे। तो मैंने कहा कि आई विल गिव यू 200 रुपीज। तो उसके लिए बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि बच्चे काफी पैसा लेकर आते हैं, मुझे पता है स्कूल्स में। बाद में पता लगा कि बच्चे तो 5-5 हजार रुपये भी लेकर आते हैं। सो आई सेड कि अच्छा दीदी से पूछ लो। जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है वो DPS RK पुरम से पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा अच्छा चलो दीदी से पूछ लो, जितने पैसे दीदी कहेगी मैं दे दूंगी। तो व्हेन शी स्पोक टू माय एल्डर डॉटर, तो शी सेड कि मम्मा 200-300 रुपया दे दो। मेरी और उसकी बात ऑलमोस्ट सेम थी, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। खूब बहसबाजी हुई, जिदबाजी हुई, नाराजगी हुई, रूठ गई, सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली 500 रुपए पे जाके बांट दी। तो मैंने 500 रुपीज दिए, और मैंने ये भी कहा कि बेटा सारे 500 रुपए खर्च नहीं करने हैं, जितना जरूरी है खर्च करना, बाकी यू हैव टू ब्रिंग बैक। ये 6th की बात है। तो मैडम वापस आई, 500 रुपया पूरा खर्च हो चुका था। एक 200-300 रुपया फ्रेंड से भी हमने बोरो करा था कि मम्मा मैंने फलानी बच्चे से 200 रुपया लिया है, उससे 100 रुपया लिया, उनको देना है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आई पे। अगले साल फिर दिवाली आई, फिर यही हुआ, फिर यही वाली बात चली, फिर ये बात उठी कितने पैसे देने हैं। फिर अल्टीमेटली मैंने उसको जो है फिर 500 रुपीज दिए। फिर देते टाइम मैंने ये कहा कि बेटा सारे पैसे आपको खर्च नहीं करने, जितना जरूरी है आप जो मर्जी लेना, बट जो जरूरी है डोंट वेस्ट मनी। क्योंकि बच्चे कई बार ऐसी चीजें लाते हैं जो घर में मतलब यू डोंट इवन हैव प्लेस टू कीप देम एंड यू वांट टू जस्ट
काइंड ऑफ डिस्कार्ड दैट। फिर भी यही हुआ, 500 रुपए लग गए और 500 रुपया फ्रेंड से ले लिया। मैं बड़ा रियल बता रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रगल नहीं करा या मेरे लिए सब कुछ बड़ा आइडियल मिला, ऐसा नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस दैट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। तीसरे साल में जाकर जब दोबारा ये बात आई, फिर मैंने पैसे देते टाइम जब ये बात कही कि बेटा जितना जरूरी है उतना खर्च करना, बाकी आपके अपने पास रख लेना। दैट वाज द टाइम व्हेन शी केम बैक विद मे बी 100 or 200 rupees बैक। सो विद दिस एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ चीजों को आपको लगातार करना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग। ये एक आम का पेड़ है जिसको आप कई साल पानी देते हैं और फल नहीं आता, और आप तरसते रह जाते हो कि कब इस पे फूल लगेंगे, कब फल आएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब इस पे फल आता है और फूल आते हैं तो इतने भरपूर आते हैं कि यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बट यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। इट्स बेस्ट। Thank you, ma'am. And the last from my side, that how can sex education be introduced to the children? Because this is a continuous struggle for the parents, how to introduce, when to introduce. So kindly guide the parents and all of us for that. Very interesting. पहली बात तो यह है कि सेक्स एजुकेशन आप देंगे या नहीं देंगे, बच्चे बहुत जल्दी अपने आप ही कहीं ना कहीं से उनको मिल जाती है। सो बजाय इसके कि वो गलत तरीके से लें, गलत व्यक्ति से लें और गलत इंफॉर्मेशन लें, एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी नीड टू गिव देम दिस इंफॉर्मेशन इन द राइट वे। ये पहली बात है। दूसरी बात यही है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत फुलफिलिंग नहीं है, तो एज पेरेंट्स मेरे ख्याल से 90% पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, and 90% of the teachers are also not comfortable talking about sex education to their students. Please correct me if I'm wrong. I hope No, you absolutely, agree. absolutely. Yes. So अगर कहीं ना कहीं अगर हमने इसको ठीक तरह से शुरू से एड्रेस करा हो तो आगे जाकर हमें ये दिक्कत ना है। So again I'll give you one example, rather I'll give you two examples to illustrate to all of you कि how you have to handle this issue. Incidentally हम कहीं से निकल रहे थे तो वहां पर गाय ने बछड़ा दिया हुआ था, तो बाहर उस बछड़ा भी बाहर ही पड़ा हुआ था, और वो जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेजेंटा वगैरह जो होता है वो सारा वो गाय के पास में ही पड़ा हुआ था। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उस वक्त शायद वो 10-12 साल की रही होगी, और छोटी वाली जो है वो 6 साल के करीब थी। तो मुझे बड़ी वाली बेटी ने पूछा कि मम्मा ये क्या है, ये सब बाहर क्या है, ये ब्लड और ये फ्लूइड ये सब कुछ क्या है। फॉर अ मिनट एज अ पेरेंट आई थॉट कि यार ये क्या बच्चा पूछ रहा है, ये क्या जवाब मैं उसको क्या समझाऊं, ये क्या, मतलब आई कुड हैव स्नब्ड हर, है ना। बट देन आई थॉट कि अगर मैं इसके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करूंगी तो हाउ विल शी नो कि व्हाट इज व्हाट। तो मैंने बहुत साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करा कि जब बेबी मदर की टमी में होता है तो टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड देयर इज अ फ्लूइड अराउंड द चाइल्ड एंड देयर इज अ मेम्ब्रेन ओवर एंड अबव इट व्हिच कीप्स द चाइल्ड सेफ एंड इंटैक्ट, ताकि बच्चे को चोट ना लगे या उसको कोई नुकसान ना हो। नाउ वंस द बेबी हैज कम आउट, so this fluid and this placenta is no more required, so that also has come out. This is nothing but fluid and the membrane that and covers the child. So these are simple ways you can use. Children will ask you ये sanitary napkin क्या है ना, लड़कियों को क्या होता है, लड़कों को क्या होता है, even to the issue of masturbation. As parents you must learn to address this in the right language, in the right way. Men should talk to their sons, women should talk to their daughters and talk about everything about menstruation, about masturbation, about infatuation. अगर आप नहीं बताएंगे यही इंफॉर्मेशन बच्चे बाहर जाके लेंगे। उसके अगले साल आई एम टॉकिंग अबाउट माय एल्डर डॉटर, स्कूल में बच्चों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया, because I had taught her reproductive system and I had talked about this incident जो मैंने आपको बताया वो गाय और बछड़े वाला। तो she said कि मम्मा क्लास में सारे बच्चे कहते हो ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या था उसके अंदर। सो एक तो ये हवा निकालना है। अगर एज पेरेंट्स और एज टीचर्स अगर हम इशू को साइंटिफिकली एड्रेस करें तो दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, पहली बात। दूसरा ये है कि साइंटिफिक लैंग्वेज आना बड़ा जरूरी है इस चीज को डील करने के लिए, बच्चों को कंफर्टेबल करना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं देना चाहूंगी वो ये है, चाइल्ड अब्यूज इज वेरी कॉमन। मैंने अभी पीछे फेसबुक पर ये पोस्ट डाली थी कि
crime against child and child abuse has multiplied during lockdown period. इसका मतलब है अगर बच्चा घर में है और बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है तो घर का ही कोई व्यक्ति कर रहा है. अगर मैंने ये इश्यू अपने बच्चे के साथ कभी डील किया होता, या मैंने उसको एक्सप्लेन करा होता, या मैंने उसका ये कॉन्फिडेंस बनाया होता, या उसको ये ट्रस्ट दिया होता कि यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट, probably you would have known this fact much earlier. So for your kids' safety, it's very important to talk about abuse. This is related to sexuality. This is related to sexual behavior. कोई और आके आपके बच्चे को नहीं सिखाएगा, आपको सिखाना पड़ेगा कि आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, टच कर रहा है, गलत भाषा बोल रहा है, गलत तरीके से आपको देख रहा है, you have to raise your voice, you have to come up to me and talk about it. यहाँ से सेक्स एजुकेशन शुरू होती है. Is that very difficult? Don't you want your child to be so safe? You expect teachers to do it? I have seen cases where children have gone to the counselor. ये मेरा देखा हुआ केस है. Children have gone to the counselor. She said कि मेरे ट्यूटर जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ वो मेरे साथ मुझे अब्यूज करते हैं. मेरी मदर मुझे जबरदस्ती भेजती है. मैंने उनको बोला भी है कि I don't feel comfortable going there, but she doesn't listen to me. She doesn't agree with me. तीसरी बात, सेक्स एजुकेशन को मैम यहाँ पे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स देके ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ डील करा जा सकता है. यू गॉट टू टेक चार्ज ऑफ लाइफ, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, योर चिल्ड्रंस लाइफ. यू गॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट. एक दिन ऐसे मेरी कजिन का एक फोन आया, जिसकी बेटी जो है वो मेरी ही बेटी, छोटी वाली बेटी की एज की थी. तो उसने मुझे बोला कि दीदी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरी जो बेटी है उसका थोड़ा सा ध्यान ना लड़कों की तरफ है. उसके ज्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो लड़के हैं, उनके साथ वो बात करती है ज्यादा, और कई बार छुप छुप के भी करती है. तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. आप एक बार उसको एड्रेस करोगे, उसके साथ बात करोगे कि भाई थोड़ा सा वो उसको समझाओगे. तो मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसा करते हैं, मेरी बेटी जो है ना ट्यूशन पे जाती है 7 बजे, नहीं 6 बजे जाती है और 7 बजे आती है. तो तू 6 बजे आ जाना, जब वो ट्यूशन पे गई होगी तो वी विल टॉक अबाउट इट, और ताकि हम अकेले में ये बात कर लेंगे. तो शी सेड ओके. तो मैंने फोन रखने के बाद मैंने सोचा कि उसकी ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मेरी भी तो बेटी उसी एज में है, एंड आई एम श्योर उसको भी तो यही इश्यूज होंगे, क्योंकि ग्रोइंग अप किड्स के मोर और लेस सेम इश्यूज होते हैं. शुड आई नॉट एज अ मदर एड्रेस दिस फॉर हर आल्सो? That was eye-opening for me. Then I called my cousin once again and I said कि ऐसा है कि वो 6 से 7 ट्यूशन जाती है, तो या तो तुम 5 बजे आ जाओ या फिर तुम 7 बजे आना, ताकि मेरी बेटी घर पर हो तो मैं उसको भी ये बात कर पाऊँ. Then when she came home with her daughter, मैंने दोनों बच्चों को साथ में बिठाकर मैंने दोनों को ये बताया कि infatuation क्या होता है, how it is normal, but how we have to deal with it. How you have to make sure that it does not, affect your performance or your life in what way. So I've given you, I think, number of examples to help you understand that all this has to be dealt, and this is sex education. वो reproductive system बताना और delivery बताने की जरूरत नहीं है, but social, उसमें हमें लड़कों से कैसे interact करना है, लड़कियों के साथ कैसे interact करना है, gender sensitization क्या होता है, अपनी safety कैसे ensure करनी है, किसी के साथ फिजिकली कितना क्लोज होना है, किसी को टच करना है कि नहीं करना है. दिस इज सेक्स एजुकेशन. इफ यू स्टार्ट विद इट, लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स विल कम. आई होप दैट आंसर्स. Yes, it did. Thank you so much. And I would now ask Sheetal Chadda to continue. She also has, I think, 2 to 3 questions. And we have a lot of questions in the chat box also, which Vanita would be addressing. So, Sure. Sheetal, if you can start with your questions. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Sindhu, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. It's been a really very enlightening experience and a wonderful experience listening to you, ma'am. I would like to ask 1 or 2 questions which has come to me from the parents and the teachers. Sure. So, one question which has come to me is, it is related to the mood swings Mm-hmm. we all are facing, including the parents and the children these days, and it has led to children being more aggressive these days, especially during the lockdown period. So can you just give us some few quick tips to how to deal with this situation? देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्रोइंग अप किड्स में मूड स्विंग्स आर वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, बिकॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सो ये होता ही है.
दूसरा, there is suddenly a very adverse situation which is very, kind of not anticipated kind of a situation. So this kind of response is again very natural. But that does not mean that mood swings are okay, so you got to put up with it. The best way to handle this is कि एक तो अपना डे इस तरह से डिजाइन करें कि आप सारा दिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े होगे, आप सारा दिन एक दूसरे के साथ नहीं स्पेंड कर रहे. गिव स्पेस टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब 3 लोग हैं घर में, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी बेटी है. तो वी डोंट ऑलवेज ऑल द टाइम सिट विद ईच अदर. शी इज वर्किंग इन हर रूम, आई एम वर्किंग इन माई रूम, माई हस्बैंड इज वर्किंग इन हिज रूम. सो बीच बीच में खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, या बाकी बीच में चाय कॉफी के लिए हम इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं, एंड देन वी गो बैक टू आवर रूम, सो दैट वी आर नॉट ऑलवेज हॉवरिंग ऑन ईच अदर्स हेड. सेकेंड, मूड स्विंग्स होने का ज्यादा कारण ये भी हो सकता है, स्पेशली दिस इज फॉर द वुमेन हु आर एट होम. I know being at home with everybody on your head and with no help can be very exhausting, can be very tiring. So look after yourself. Don't compromise on majorly 2 things right now. तीसरी में फिर कभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ और है. Don't compromise on your food and on your sleep. 3 meals प्रॉपर खाइए, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत घर का काम करना है. यही मेरे हस्बैंड परसों मुझे कह रहे थे कि इंदु थोड़ा सा योगा करना शुरू कर दे, वो रामदेव जी का बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता है 8 से 8:30. मैंने कहा जब आप टीवी देख रही होता ना बैठ के, आप तो मैं बहुत योगा कर रही होती हूँ, कभी कपड़े धो रही होती हूँ, कभी सफाई कर रही होती हूँ, कभी मैं खाना बना रही होती हूँ. मैं सिर्फ जब पढ़ती हूँ तब मैं बैठती हूँ, बाकी सारा टाइम मेरा योगा ही चल रहा होता है. सो देन ही गॉट टू रियलाइज कि हाँ, इसकी तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत है. सो प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ. अपना खाना और स्लीप, ये 2 बायोलॉजिकल नीड है. अगर आप ये लुक आफ्टर कर लें, 50% ऑफ योर स्ट्रेस विल बी ऑटोमेटिकली लुक्ड आफ्टर. तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, घर के सारे काम की लिस्ट बनाइए, सबको एक साथ बिठाइए, सबके ऊपर काम बांटिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लॉकडाउन कितना टाइम और चलने वाला है. You got to, I would request all men and kids to come forward and take responsibility so that everybody gets some time to rest, relax, me time. जब आप अपना कुछ कर सकते हो, चाहे वो म्यूजिक सुनो, चाहे वो टीवी देखो, चाहे योगा करो, मेडिटेशन करो, that's completely your choice. But this is how we all have to come together to handle this situation. Sheetal, I hope this helps your. Thank you so much, ma'am. One more question which I would like to take. Ji. Ma'am, children nowadays are less empathetic as compared to our generation. So how should these values be instilled, ma'am? यार मैं ये बहुत जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है जो मैं नहीं देना चाहती. मैं ये नहीं कहूंगी कि एम्पैथेटिक नहीं है. एक तो बॉयज को एक्चुअली इमोशंस एक्सप्रेस करना हम अलाउ ही कहाँ करते हैं. जब भी वो कभी कोई इमोशनल इशू पे कोई बात करते हैं तो हम ज्यादातर ये कहते हैं क्या लड़कियों की तरह बात कर रहे हैं ना. तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल कंडीशनिंग गलत है. इस चीज को हमें डिस्करेज करना होगा. बॉयज शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. अगर वो हर्ट हैं, अगर वो उदास हैं, अगर वो चुप हैं, दे शुड बी अलाउड टू काइंड ऑफ से दिस. हाँ, ये मैं जरूर देखती हूँ कि पीपल हैव बिकम इनसेंसिटिव इन देयर बिहेवियर. किड्स आई सी समटाइम्स इनसेंसिटिव, एंड लेट मी टेल यू, इट्स कमिंग फ्रॉम सोसाइटी. किड्स आर मिरर ऑफ द सोसाइटी. जो आज हम उनको दे रहे हैं वो तो कच्ची मिट्टी है. जो हम उनको आज दे रहे हैं वो हमारे सामने आ रहा है. आज अगर एज ए सोसाइटी हम डिसाइड कर लें कि हमने इन बच्चों को ठीक व्यवहार दिखाना है. मैं अगर अपनी मेड और सर्वेंट के साथ बदतमीजी से बात करूंगी, 2 मिनट लगेंगे मेरी बेटी को सीखने में कि बदतमीजी के साथ मेड के साथ बात कर सकते हैं. मुझे एक किस्सा याद आया कि बहुत साल पहले की बात है. मेरी बड़ी वाली बेटी तब 5-6 साल की रही होगी. तो तब मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे मतलब जिंदा थी, मेरे साथ थी. तो मेरी बेटी एकदम मेरे पास आई और एकदम आके बोला कि मम्मा, दादी मम्मा बहुत गंदी हैं, मुझे ये नहीं देती हैं. नाउ एज अ मदर आई कुड हैव सेड कि हाँ दादी मम्मा बहुत गंदी है, लाओ मैं तेरे को देती हूँ. आई डोंट नो, एज एन इम्पल्स आई एक्चुअली स्लैप्ड हर. आई सेड यू कांट टॉक लाइक दिस अबाउट योर ग्रैंडमदर. So all such behaviors which are not appropriate, you have to consistently check and stop, discourage. और याद रहे, अगर उनको करने के लिए मना कर रहे हैं तो वो बिहेवियर आपके कोड ऑफ कंडक्ट में भी नहीं होना चाहिए. Thank you Does so that much. answer? Does Yes, that answer? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Neetu, ma'am.
Vanita, Adya, can I please ask you now if Vanita can take up the questions which are in the chat? Because there are a Yes, lot of ma'am. questions which are coming up from the parents. Yes, just ma'am. one Lots second. of Adya, I queries. think wants to ask something. Adya, can you wait for 2 minutes? I'll let Vani finish. Is it okay? Okay. Okay, Vanita, please tell me. Yes. First of all, I would like you to thank you, ma'am. Thanks a lot for such a wonderful and enlightening session which we have gone through. It was really an eye-opener as a parent and as a mother also, and a teacher also. So there are so many questions which my parents have come up with. Let me start taking one by one. First, one of them has asked how to be friends as well as guide to our children. देखिए, गाइड तो आप हमेशा रहेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारी हमेशा इंटेंशन होती है कि हम अपने बच्चे को बेटर कर पाए, है ना. फ्रेंड बन जाइए, फिर बहुत सटल तरीके से गाइड बन सकते हैं. मैं अपना एग्जांपल से आपके साथ शेयर करती हूँ. सिंस माय किड्स आर ग्रोन अप नाउ, तो कई चीजें वो ऐसी करते हैं जो मुझे ओके नहीं लगती हैं, जो मैं एंडोर्स नहीं करती, जो मुझे वो नहीं है. पर एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दैट नाउ दे आर ग्रोन अप and they will make their decisions, so I have to accept even when they don't agree, when I don't agree with their decision. So what I practice in my life, I can share with you. The best way to handle such thing is give your opinion and take a step back. जैसे कोई चीज वो कर रहे हैं और आपको लगता है वो गलत है, आप कहिए कि बेटा ये गलत है. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कहना चाहूंगी. Allow them to make safe mistakes. When I say safe mistakes, I mean there are things that they may make mistake about. For example, how they are utilizing their time, their day, or maybe the clothes that they buy, or maybe something that you think are not okay. So as long as it is not detrimental or harmful to them in terms to their life, or there's a major kind of this thing. Otherwise, I think you have to give them that space to make mistake. For example, वो किसी दोस्त से बात, बेटा है और किसी दोस्त से बात कर रहा है और आपको लगता है कि ये दोस्त मुझे इसका इतना ठीक नहीं लगता है, या इसकी कंपनी अच्छी नहीं है, या ये थोड़ा सेल्फिश लग रहा है, या ये इसके साथ हेल्पफुल नहीं होगा. So there are chances then your child will come back to you and he will say कि भाई मैंने जो ये वाला दोस्त के साथ मेरे साथ ये बात हो गई, तो इंस्टेंटली हमारे मुंह से क्या निकलता है, देखा मैंने कहा था ना, मैंने मना किया था कि तू इसके साथ दोस्ती मत कर, इसके साथ तुझे बात नहीं करनी चाहिए. सो यहीं पर हम क्रिटिसिज्म में चले गए. अगर मेरा बच्चा गलती कर कर वापस आया है और मैं उसको कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, दिस इज हाउ वी ऑल लर्न हाउ टू मेक राइट डिसीजंस, गलती होती है. सो यू गॉट टू रियली काइंड ऑफ बैलेंस. और मुझे ये पता है कि जब हम अपने बच्चों के साथ होते हैं और अगर उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाता है, they will come up to you asking for your guidance. मजा तब है इस रिलेशनशिप का जब आपके बच्चे का ये ट्रस्ट हो that there can be nobody else other than you who can guide them in their life. And they are kids, they need that guidance and help. They will come up to you. आप बताओ, स्कूल में, नेबरहुड में, फ्रेंड्स में, आपसे भी बेटर कोई वेल विशर हो सकता है बच्चे का. But that relationship has to be developed, it has to be nurtured. ये trust आपको earn करना पड़ेगा, automatically नहीं मिलेगा. So you have to work for it. Yes, please. Thank you, ma'am. Next question that has come up is that students, usually teenagers, find it hard to say no in certain situations. Maybe it's because of their age, maybe because of their ego or whatever. Now the parents wants to ask that how they can give that confidence to a child that it's no harm in saying no or accepting a no. See, one is how many times do we accept their no? That is one thing. That's one thing. And second is when you explain them the benefits of saying no and how it will empower them, they will slowly learn to say no. Again, I'm going to give you an example to help you understand it. I'm taking example of my younger daughter when she was in modern school. So there were 5 girls. There were total 45 students and there were 5 girls who were friends. So usually kids would sit with one partner. That means on one desk, two kids would sit together. So since there were 5 friends, so
4 other girls were coming from an area, like 2 were coming from one area and 2 other girls were coming from another area in their private car. So since they were traveling together, so naturally they were more friend with each other. So my daughter used to be, usually, you know, if she would reach late, she will not get a company to sit, and she will have to sit with one of the boys, because they were equal, girls and boys. So they were 46, I think, students. So ultimately she would sit with one of the boys. So if she sits with any boy, they would make fun of it. And if she asks any one of these 4 girls to come and sit with her, they will never come and sit. And third would be, in case if they are alone, for example, if anybody hasn't come to sit with them, so they will ask Nanki to come and sit with her. So this is the equation she shared with me. Then I realized that how will she learn to respect herself? How will she learn to, you know, to earn that confidence that I have to learn to say no. So what I taught her, I said, whenever you go and sit and occupy a seat, and in case if one of them does not have a friend with them and they say, you come and sit with me, don't leave your seat and go and sit with anybody. Tell them to come and sit with. You sit alone, that's okay, but don't change your seat for anybody. So she learned that I don't have to bow down, because normally, because of peer pressure, this is what happens with kids. They kind of, you know, bow down to their friends, and then their self-esteem gets lost. So this is how you have to illustrate them and show them how it is going to help them build. And that's how they learned. They learned how to, I'm talking about both the daughters, they learned how to handle their peer pressure. Sorry, I'm not able to hear you, Vanita. Hold on. Is it audible, ma'am? Am I audible? Yes, I can hear you now. Now, the next question that came up is, if a child is getting adamant on small issues, then what to do and how to handle? If the child is acting adamant, पहली बात, अगर उसकी डिमांड ओके है, फाइन है, एक्सेप्टेबल है, तो इंस्टेंटली मान लीजिए, तो बच्चे को समझ आती है कि जो चीज ठीक है उसके लिए मुझे जिद करनी नहीं पड़ती. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है कि यू डोंट वांट टू एग्री टू इट, तो जो स्टैंड आपने एक बार लिया, आपको उस पर फर्मली स्टैंड करना पड़ेगा. एंड नॉट ओनली यू, योर स्पाउस एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो शुड एंडोर्स योर डिसीजन, सो दैट चाइल्ड लर्न्स दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. बच्चा हो सकता है रोए, बच्चा हो सकता है जिद करे, बच्चा हो सकता है ये कहे मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चा हो सकता है ये कहे मैं जमीन पे लेट के जिद करूंगा. These are all tantrums they throw when you don't agree to them. Just ensure your child's safety. That's all. So that वो अपने आप को गिरा ना ले या चोट ना लगा ले. Go away, go out of that room. Leave them alone. Even if they cry for 5-10 minutes, it's all right. After they finish crying, they're going to come to you. They're going to ask you, say you something. That is the time. Talk to them and help them understand. If it is a legitimate need, I'm going to fulfill. If it is something which is not acceptable, this is what happens when they are playing on phone or they are watching TV, and when you stop them and they become very jittery and they're very agitated, and then you ultimately either give in or you get frustrated, or it may escalate and you may become aggressive. But we have to learn to deal with it firmly in an assertive way. Thank you, ma'am. The next question that comes up is how to address emotional tantrums amongst siblings. Emotional tantrums amongst siblings. With the younger siblings, बड़े वालों को तो आप क्या संभालोगे, वो तो आप ही को संभाल देंगे. हाँ, छोटे siblings के लिए देखो, अगर ये बात किसी बच्चे ने पूछी है, तो I think is it from a child? No, ma'am, it's from a parent. तो parents के sibling मतलब अपने भाई बहनों के लिए कह रहे हैं. Oh, no, ma'am, okay. About their children. If they have 2 children, so how they should handle the tantrums which are there, which we face amongst the siblings. Which we term as a sibling rivalry these days. बहुत interesting questions पूछ रहे हैं parents, and I really appreciate that. One is when you are dealing with them, होता क्या है, बच्चा बड़ा गलती करे या छोटा गलती करे, हम बड़े वाले को एक ही बात कहते हैं, बेटा तू बड़ा है, तू मान जा. और छोटे वाले को कहते हैं, देखो बड़ा भाई है, तू उसकी सुनता नहीं है ना, मान जा. So दोनों को ये समझ नहीं आता कि what is right and wrong. अगर as a parent आप ये stand ले कि गलती बड़े की होगी तो बड़े को डांट पड़ेगी, छोटे की होगी तो छोटे की पड़ेगी, या जिसकी बात ठीक है, you are standing with that person.
automatically they learn that parents are not going to take any one person side. जिसकी बात ठीक होगी उसकी बात मानी जाएगी. तो धीरे धीरे वो उनको समझ आ जाती है. Sibling rivalry is very common and we usually bow down to their emotional blackmailing. और जब आप एक बार ही मान जाते हैं तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है. उनको पता है मैं रोके कहूंगा ना, आप हमेशा उसी की बात मानते हो, मेरी कभी नहीं सुनते हो, देन मी से अच्छा नहीं आ जा, मैं तेरी पहले सुन लेता हूँ. सो सारा प्रोसेस ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. Right, ma'am. Next question which we have is how working parents can handle tough situations What kind of with tough regard to their children? With It could regard be to? emotional with regard to their children. Hmm. How can they handle it? How working parents should tackle the situation? भाई देखो, वर्किंग पेरेंट्स का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने बच्चे का जो टाइम है वो कट डाउन कर दोगे. सेट योर प्रायोरिटीज. योर किड्स आर योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. Both parents should make an effort to spend time with their kid. Both parents should make sure that their child is safe and is attended by one of the family members. और जब आप घर पर होते हो, जितना भी टाइम आप घर पर होते हो, उसमें से एक आधा पौना घंटा जरूर निकाले when you are spending quality time with your kid. I'm again reminded of one example. I was doing job. It was a government job. My working timings were 9 to 5:30. So virtually the whole day I was out. So I was really upset that I'm not able to give time to my older one. उस वक्त सिर्फ बड़ी वाली बेटी थी, छोटी वाली was not born. So I once spoke to my teacher and I kind of told her that, see, I'm feeling very bad that I'm not able to give enough time to my child. So very nicely she answered. ये कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो 25 साल पुरानी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ. She gave me one line and she said कि इंदु, it is not the quantity of time, it is the quality of time that will decide how you are attending to. तो चाहे आप आधा घंटा भी देते हैं, अगर आधा घंटा मम्मी सोच ले कि मैं टाइम दूंगी, आधा घंटा पापा सोच ले कि मैं टाइम दूंगा, आधा घंटा अगर बाकी घर के कोई लोग सोच ले, तो मुझे लगता है आधा आधा घंटा करके अगर 3-4 लोग अगर टाइम दे दे तो बच्चे के पास इतना ही टाइम है. बाकी टाइम तो उन्होंने पढ़ना है, खाना है, सोना है, बाकी काम करने हैं. पर जब वो आधा घंटा आप देते हैं बच्चे को, तो पूरी तरह उस बच्चे से जुड़ जाइए, उसके लेवल पर चले जाइए. मेक फ्रेंड्स विद दैट चाइल्ड. दैट विल रियली develop your bond with your kid. Right, ma'am. One very good question I find it, how to encourage physical activities these days amongst the children, because it's really lagging. पहले ये बताओ, पेरेंट्स खुद करते हैं? खुद करोगे तो आपको बच्चों को नहीं कहना पड़ेगा. खुद नहीं करोगे तो आपको बच्चों को कहना पड़ेगा, लेकिन वो कोई असर नहीं लाएगा. तो you got to, और स्पेशली बोथ द पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मदर फादर. जो आप करोगे, देखो बच्चे आपकी परछाई हैं, आपकी शीशे में आपकी शक्ल है, जो आप कर रहे हो वही आपको दिखेगा. Right. Now one of the parents have a concern that father is there at home most of the time, and mother is feeling sometimes that child is not connected with him in spite of the fact that he is there at home all the time. So how to handle this situation? बच्चा आपकी उम्र पे नहीं आएगा, आपको बच्चे की उम्र पे जाना है. पूरी डिस्कशन ही इसके बारे में थी. Find what can help you connect with your child. It could be a game. It could be a TV program. It could be a food item. मैंने मिलकर अपने बच्चे के साथ मैगी बनाई, हम दोनों ने मिलकर, और हमने शेयर करके खाई. Well, that's enough to start with. Slowly the child will get to see that you are interested in your child. You are wanting to spend time. Right, ma'am. Next question is, how to control what our child is watching over the net? How to control? Yes. How we can keep a check on that? देखो, एक तो ये है कि आई थिंक बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, जो आप उनको वो कर सकते हैं. पर बच्चे आज के ज्यादा स्मार्ट हैं और वो उन सब सेटिंग्स को जो है वो कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं. तो इसमें मेरा जवाब ये होगा कि अगर लोकस ऑफ कंट्रोल अगर आप बच्चे के अंदर पैदा कर पाएं, तो बच्चे को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना. फिर एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. Are we going very long? Neetu ma'am? No ma'am. We still have a lot of queries left. So you please let us know, because I know we have extended.
So kindly let me know your time limit. Fortunately, yesterday I decided to take a pack where we have unlimited time. So it is already 1 o'clock, but I have another webinar post lunch. So That's what we'll what I'm do, asking. maybe it is going to be 1. So another 5 minutes will. It's Yes, 6 sure, minutes ma'am. to And 1. can we also do one thing? Whatever questions are left, we can get the questions mailed to us, and then we'll forward it to you of the parents. Can we do that? मैम ईमानदारी से बताऊं तो मुझे जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा. जितना टाइम यहाँ पर है, I'll try answering the questions, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथ-साथ काम चल रहे हैं. So I'm really sorry, मैं उतना पता नहीं टाइम ना निकाल पाऊं, तो मैं I don't want to make a false promise which I will not get. Yeah. Okay. So वनीता, आपका प्रश्न क्या था वहाँ पे? मैम, it was कि how to control the net watching. Yes. हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो मैं फिर अपना एक एग्जांपल ले रही हूँ. Again, my elder one was around 12 years. छोटी वाली जी थी वो तकरीबन 6 साल की थी. तो उन दिनों टीवी पर FTV आया करता था, अगर आपको याद हो तो. काफी पुरानी बात है, पता नहीं कितने लोगों को याद है. FTV आया करता था और कई बार FTV पे इतने वल्गर ड्रेसेस दिखाते थे जिसका कोई सेंस नहीं था. एक्चुअली अब तो डेफिनेशन ऑफ वल्गैरिटी चेंज हो गई है. हमारे लिए तो वो भी वल्गर था जब आपकी नेकलाइन दिख रही है, तो हमें वो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि बच्चे ये सब कुछ क्या देख रहे हैं. सो वन डे आई सैट विद माई ओल्डर चाइल्ड, बड़ी वाली बेटी के साथ मैंने बैठकर बात करी और मैंने उसको बोला कि देखो बेटा, टीवी पर ना कई बार ऐसे आपको सीन दिखेंगे, ऐसे प्रोग्राम दिखेंगे जो कि आपकी इस एज में देखना ठीक नहीं है ना. तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि ये वाले सीन अगर आते हैं तो आप अपने आप उसका जो है चैनल चेंज कर दिया करो. और जब आप बड़े हो जाओगे तब आप डिसाइड कर लेना आप क्या देखना चाहते हो. आई विल नॉट स्टॉप यू, बट फॉर द टाइम बीइंग इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप पर बुरा असर पड़ेगा, नानकी के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा, तो थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो. ट्रस्ट मी, many a times I would be standing behind them and they won't be knowing that I am behind them. They'll be watching TV. अगर कोई किस सीन आ जाता था या कोई FTV पे कोई ऐसा वाला कोई सीन आ जाता था जिसमें कोई ऐसी ड्रेस आ गई जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, she would change the challenge. So मैं कहना ये चाहती हूँ, एक अच्छा रोल मॉडल अगर हम बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए और ठीक वैल्यूज डाल पाए और फिर उनको टाइम एंड अगेन उनको हम किसी ना किसी तरीके उनको कम्युनिकेट कर पाए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. आज जब मैं आज के सेशन के लिए तैयार कर रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग एक मुझे थॉट आई विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड देन आई थिंक वी विल ऐड. हम आद्या का एक प्रश्न जरूर लेंगे बिकॉज आद्या ने बहुत बारी हाथ उठाया है. तो मैं अपनी वो बात खत्म करके आद्या फिर आपके पास आती हूँ. वनीता, इसके बाद हम और कोई क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. आई होप. ओके. सो मैं ये सब पेरेंट्स को चाहती हूँ कि वो इस बात को सुने और एक बारी मतलब थोड़ा सा ये सोचने के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि गॉड कम्स इन अवतार ऑफ किड्स टू मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग. ये आज की मेरी बैठे बैठे मेरे दिमाग में थॉट आई. इट्स हिज दिस थिंग कि गॉड कम्स इन द अवतार ऑफ किड्स टू मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग. बच्चे हर समय हमारे ऊपर चौकीदार की तरह भगवान ने बिठा दिए हैं. अगर हम चाहें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो, हमारी जिंदगी की दिशा बेटर हो, हम सही इंसान बन सके, ईश्वर बच्चे के रूप में चौकीदार बनकर आपके घर पर आपके सामने बैठा हुआ है. सो यू गॉट टू टेक अ कॉल what kind of life you want to lead yourself or what kind of values you want to give to your child. Your children are your mirror. आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए कि मैं कैसा इंसान हूं या मैं कैसी इंसान हूं. What you sow is what you will get. I think that is the last message from me, but I would like to answer Adya. So Adya, should I unmute you? I've done. Yeah, Adya, please. Hi, ma'am. Good afternoon. First of all, thank you for such an enriching session. I mean, we all have benefited out of it. And in fact, thank you to the Modern School also for having this session with us. And also, Modern School has been instrumental in adding a lot of values to my child. She is in P1. Her name is Adya. I am Devika, her mother. Okay. I'm talking from her
IB. Okay, okay. And I mean, modern school has been doing a fantabulous job. I do not have a question. I wanted to just add that we should have a gender neutral environment at our at our home, so that the mothers, I sincerely feel the mothers should not think that they are superwomen. They should not be a superwoman. They should involve fathers, the males of the house, equally into their household work, because kitchen work, I mean, I do at our home. My husband has been a penguin dad. I have 2 daughters. So this is a message to all the mothers and few of the fathers, if they are watching. Fathers are to equally contribute, so that the children learn that it is not, I mean, I am working, my husband is also working. So we are equally contributing to the finances of the home. So the household work has to be done by both of us. This is how the children will learn that the father is in the kitchen. Yeah. He's cooking. So it is something is acceptable to everybody. And the mothers should know where when to put their foot down. Like, there are many mothers who are not getting enough sleep, enough rest, because, and then they feel overburdened, and then they are becoming unhappy parents, and somehow the child also feels unhappy. Yes. Yes. I mean, this is a small message from my side. So true. So true. So Thank true. you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much for Thank giving you, this. ma'am. Thank you, Manita, ma'am. You're Thank you most so much. welcome. You're Yeah. most welcome. Thank you, Indu ma'am. I would just like to sum up with that what I have gathered from Indu ma'am's wonderful session is that I think 2 kinds of parenting we need to switch over to. There are a lot of kinds of parenting, but I would personally stress on 2 kinds where we at times get into the snowplow parenting, which is removing obstacles from the children's way and path, and not letting them grow by covering them so much. So let us adopt the style of dolphin parenting, and wherein we are being with them, we are hand holding them, being gentle along with being firm, because that is what is probably required to lay down rules for them, to be role models, just like Adya's mother said, to be role models. So if husband and wife both are contributing, so the children are also seeing that. The children are also seeing how the parents are communicating with the grandmothers or grandfathers or the parents or the elders. And that is how it slowly comes down, because we do not realize that ultimately after a long period of time, when a child is an adult, then we try and see, and then we see the mirror, because Yeah. I can also say that what Indu ma'am is saying, that my child is a grown-up child, and there has been a lot of conversation done. Believe me, I am very sure she will also agree that it's not that we have not got angry with our children, Yeah, but yes, there has been never a hand raising on the child. But yes, a lot of conversational sessions which were done, and out of experience, even I am sharing with you, it really, really helps. So this is a very good time that we all have got to be with our children, to be qualitatively with our children, and it will surely help them to be the kind of a person which you are wanting them to be. So thank you, Indu ma'am. Thank you so much. I wouldn't take more time of yours. I know you are absolutely busy with back-to-back sessions. And thank you for this enrichment. I am very sure that our parents, all the staff, we all have got something, we all have learned something, no matter wherever, whichever level we reach, wherever we reach, there is always a learning happening from each other, and that is what we have to train our children to, that it is a learning which happens even so every day. Like ma'am said कि भगवान, ये बच्चे भगवान का रूप हैं, तो हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं. Whether they are in school, we keep learning when they are in school. Simultaneously, when they are with the parents also keep learning. The perseverance, the patience, the act of role modeling, all this we learn from our children, and we do for our children. So thank you so much, everybody. Thank you, Indu ma'am. Be Thank safe. you so much.
Thank you all of you for patiently listening. I know it's lunchtime and many of you may be actually now hurrying up to go and cook for your family. I will not stop you, and thank you everybody on the Facebook also who is watching this program live. Thank you for connecting with all of us. Thank you so much. Thank you. Well, God bless on this, I would say that Thank my you, ma'am. husband has cooked the lunch today. you. So Excellent, that is his excellent. contribution. So that's fantastic. I am over here talking to everyone. So thank you, everyone. Bye bye. Stay Thank you, safe. ma'am. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thank you. Thanks. Everyone. Thank you, Thank ma'am. you, Thank Indu you. ma'am. Thank you, Thanks for ma'am. being there. Thank you Thank so you. much. God bless you. Thank you.